So friends, let us begin with the most important and enthusiastic session that we have been waiting for. I, Sanket Jain, as the coordinator of Bhadade Charity Foundation, would consider it my pleasure to provide you with all the short glimpse and insight of our initiative of mentorship program. Our vision behind mentorship program is to lay down a path which would act as a guiding force for aspirants. Our roadmap and blueprint plan for mentorship program would consist of sessions and seminars on technical peculiarities, personality development workshops, and path-breaking seminars on career-oriented concepts. Today, we are initiating our mentorship program with a topic which has a core importance in every aspirant's life, in every phase of its life. So, to embark the mentorship program, we have gathered here to be enlightened on a crucial topic, how to crack CA exams, which will include the strategies and aspects to be taken into consideration while pursuing CA course. So now, I would plead CA Parikshit Bhadate to escort CA Padam Singh Patil and CA Devendra Nawal to escort CA Nishant Khandelwal on their app. Now, I would like to request CA Parikshit Bhadade sir to honor CA Padam Singh Patil with a bouquet, book and memento as a token of love. Also, I would request CA Devendra Nawal to welcome CA Nishant Khandelwal with a bouquet, book and memento as a token of love. Now I would request CA Karan Kabra and CA Shruti Kabra to come forward and to be and accept our gratitude. Now I would request all the dignitaries to be off the dais so that we can begin with our session. I feel prodigiously gratified and extremely happy to have this immense honor and privilege to welcome our today's speaker, who started from scratch, having no hopes but reached a pinnacle of success and opulence with his consistent efforts, commendable determination, and applaudable dedication. He is a true example of dreams come true when you have utmost spirit and zest to work relentlessly for it. Padam Singh Patil started his journey in 2010, where he completed his Bachelor of Commerce as a gold medalist. Thereafter, completed his Masters of Commerce in 2012, where he secured third rank in the university. He has completed his articleship in Kavadia Parak and Associates. He became Chartered Accountant on 16 July 2013, clearing all levels of examination in first attempt. He has also completed his state eligibility test in 2017 and national eligibility test in 2019. He has recently cleared Diploma in Banking and in Finance in 2022. He initiated his profession as a teacher in 2013. He is well versed in multiple subjects like economics, OCM, secretarial practice, information technology, corporate law, and enterprise information system.
He has imparted knowledge to more than 10,000 students as of now. Lastly, he not only supports his students academically, but also acts as a great motivator and staunch bearer in each and every phase of their life. Now, I would request C. Padam Singh Patil to come on the stage and continue with the session. थैंक यू संकेत एंड बदार चैरिटी फाउंडेशन इस अपॉर्चुनिटी के लिए। और हम इमीडिएटली टेक्निकल सेशन पे शिफ्ट हो जाएंगे। पहले मैं पानी पी लेता हूँ। क्या है, कोर्स ने अच्छे अच्छे को पानी पिलाया है। तो जो टॉपिक अलॉट हुआ है इस सेशन के लिए, इट्स क्वाइट टफ, हाउ टू क्रैक सीए एग्जाम। एंड टॉपिक सीए एग्जाम से एक्चुअली टफ है बिकॉज ऑडियंस को ये समझा पाना, यहाँ से शुरुआत होती है कि एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए, प्रिसाइजली क्या होना चाहिए विद दैट मच टफ एग्जाम कि कैसे करना है। कि एक जो सेशंस आपके जो फॉर्म्स भरवाए थे उसमें एक पर्टिकुलर चीज़ इन्वॉल्व थी कि क्या क्वेश्चंस आप नॉर्मली पूछना प्रेफर करोगे। उसमें काफ़ी सारी वैरायटी आई है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वैरायटी आई है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके इसको सिंपल रखूँ। जो सेशन है उसमें ब्रॉडली दो पार्ट में हम कवर करेंगे। एक कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए क्या अप्रोच हो सकता है और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए क्या अप्रोच हो सकता है। बिकॉज दोनों सब्जेक्ट्स में लगने वाले या यूज़ होने वाले स्किल सेट थोड़े डिफर करते हैं। इवन बहुत बार स्टूडेंट्स का ये भी डिफरेंशिएशन होता है कि थ्योरी सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा बेटर वो फील करते हैं या कभी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से या टैलेंट या स्किल्स के हिसाब से। तो हम ब्रॉडली ये स्ट्रक्चर रखेंगे कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड पार्ट होता है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है। एंड देन आफ्टरवर्ड्स जो क्वेश्चंस आपने दिए थे गूगल फॉर्म, आपको जो लिंक दिया था, लिंक पे कुछ कॉमन क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चंस के थ्रू हम जाएंगे और फिर आपको ये एग्जैक्टली गाइड करने की मैं कोशिश करूंगा कि हाउ टू क्रैक अ सीए एग्जाम। लेट्स स्टार्ट with the theory subjects as usual. theory subjects थोड़ा ज़्यादा पढ़ाना या theory subjects पढ़ाते हैं इसलिए ये पर्टिकुलर टॉपिक डेफिनेटली हमको मिलता है। यहाँ पे आपको किसी भी एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस। पास होना ये एंड रिजल्ट है, इट्स अ गोल। नाउ यू हैव टू अचीव विद द सर्टेन स्टेप्स एंड प्रोसेस। ना प्रॉब्लम ये है कि ये प्रोसेस हर किसी के लिए सेम नहीं हो सकती बिकॉज स्टूडेंट अलग अलग। तो जनरल क्या गाइडलाइन हो सकता है वो मैं एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। इन केस आप सूटेबल अरेंजमेंट्स या सूटेबल अगर आपको चेंजेस लगते हैं या आप इंडिविजुअली फील करते हो कि ये सर्टन चीज हम डिफरेंट वे से अचीव करते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। द प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट कि आप वो प्रोसेस पे बिलीव रखो और फिर गोल्स की तरफ जाओ। यूजुअली क्या है, गोल पहले से सेट होता है, जो बेसिक लाइन पास होना है, या फॉर दैट मैटर कोई स्टूडेंट्स होते हैं इनके गोल्स थोड़ा और बेटर लेवल पे होते हैं कि हमको रैंक चाहिए। तो जो भी तुम्हारा गोल है प्रोसेस से होके जाएगा और उस प्रोसेस पे बिलीव करना सीखो। तो यूजुअली एक बड़ा इशू जो सीए स्टूडेंट्स, फॉर दैट मैटर कोई भी स्टूडेंट एग्जाम के लिए फेल करता है, विच इज अ सेल्फ डाउट कि ये होगा क्या, वो होगा क्या, ये होगा क्या। इफ यू आर गोइंग थ्रू अ सर्टेन प्रोसेस, अगर आपने वो डिसाइड किया है, बिलीव इन दैट प्रोसेस। आपको उस प्रोसेस पे बिलीव रखना है एंड देन स्टार्ट करना है। सो इट विल बी अ बेटर अप्रोच बिकॉज क्रिएटिंग अ सेल्फ डाउट, मतलब आप एक दिमाग में सोचते रहते हो कि यार ये करूँ क्या, ऐसा होता है, किसी ने ये बोला, ये करूँ क्या, ऐसा होता है। फिर आज एक सेशन तुम पढ़ के जा रहे हो, इस सेशन में तुमको सर्टेन गाइडलाइंस मिले और तुमको लगी यूजफुल है, तुम वो कर रहे हो और सडनली बीच में कुछ और आ गया। सो जो भी प्रोसेस कर रहे हो, अगर वो गोल की तरफ जा रहा है, आपकी मंजिल की तरफ जा रहा है, तो बिलीव इट। जस्ट बिकॉज कि कोई पर्टिकुलर एक अनसर्टन सिनेरियो या अनसर्टनिटी क्रिएट हो गई है और अब हमको सडनली सब कुछ बदलना है, ये अप्रोच नॉर्मली नहीं काम करता, स्पेशली जब सिलेबस वास्ट होता है। क्योंकि सीए सिलेबस के साथ सबसे बड़ा इशू है कि उसका वास्टनेस, इतना सारा सब्जेक्ट, क्योंकि वो खत्म ही नहीं होता। जैसे जैसे हमारे लेवल अप होते जाते हैं हमको लगता है ये तो क्या था,
जो आज स्टूडेंट इंटर में है उनको लगता है फाउंडेशन तो ठीक ही था, 4 ही सब्जेक्ट थे, 8 करके देखे तो समझेगा ऐसा। और जो फाइनल से होके मतलब इंटर से होके जाते फिर समझता है कि आर्टिकलशिप करके देखो फिर समझेगा। फिर फाइनल में आते आते समझते हैं अरे आर्टिकल तो फिर भी ठीक है, बॉस बोलता है क्या करना है। फाइनल में आके देखो क्या मतलब सब्जेक्ट के नाम याद करने से शुरू हो जाता है। SFM बस इतना पता होता है, फुल फॉर्म कहाँ से है, यहाँ से शुरू होता है। तो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, उस पर बिलीव रखो। जो भी एक सर्टन वे तुम फॉलो कर रहे हो, अगर तुम उस पर फेथ रखोगे तो ये हो। कुछ लोगों ने जो 1-2 क्वेश्चंस थे कि कंसिस्टेंसी कैसे रखना, मोटिवेशन कैसे रखना, ये सब एक्सटर्नल नहीं हो सकता, ये इंटरनल होना चाहिए तो काम करेगा। सो बैक टू द प्रोसेस। अब यहाँ कुछ कॉमन चीजें लिखी है जो अदरवाइज तुमने सुनी हुई होंगी, बट मेरा पर्पस ये रहेगा कि ये बताओ कि कैसे। जैसे अभी यहाँ पे लिखा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट्स, ये पहली चीज लिखी है, सबको पता है कंसेप्ट समझनी चाहिए, इंपॉर्टेंट कैसे, राइट। तो एक चीज अंडरस्टैंडिंग होना ये इंपॉर्टेंट है, मतलब अदरवाइज भी आप उसका इंपॉर्टेंस अलग अलग जगह सुन चुके हो, बट जब आप कोई वास्ट चीज के साथ डील करते हो तो उसका एक्चुअली सबसे पहला स्टेप है कि उसको समझो। समझने के लिए कैसे, जैसे थ्योरी सब्जेक्ट्स अगर है तो जो भी आप ट्यूशंस करते हो, टीचर्स आपको जो पढ़ाते हैं उसके थ्रू एक अप्रोच जो आपका होना चाहिए कि नहीं समझता है तो इमीडिएटली टैकल करना। अब हम थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करते हैं कि यूजुअली स्टूडेंट ऐसा एक नॉर्मल मिस्टेक जो मैं मेरे एक्सपीरियंस से देखते आता हूँ कि कोई चीज नहीं समझी है, ठीक है देख लेंगे, ठीक है देख लेंगे, वो ठीक है देख लेंगे वो वापस कभी आता नहीं। वो तब आता है जब पूरा सिलेबस हो जाता है और फिर सडनली बुक्स ऐसे दिखते हैं और फिर रिवर्स काउंटिंग शुरू होते हैं, 90 डेज डिवाइडेड बाय 4 सब्जेक्ट, 90 डेज डिवाइडेड बाय 8 सब्जेक्ट, फिर पर सब्जेक्ट इतना दे, फिर इतने चैप्टर, ऐसा वो तब नहीं होना चाहिए। जब आप पढ़ने की प्रोसेस में हो तो वो फर्स्ट राइट फ्रॉम द डे वन आपका ये अप्रोच होना चाहिए कि आपको उसको समझना है। तो भले वो ट्यूशन में अगर तुम टीचर्स ने तुमको पढ़ाया नहीं समझ में आया तो जो फेलो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करके देखो, बिकॉज रिसेंट टाइम में आपको बहुत सारा ऑनलाइन एक्सेट्रा इसके थ्रू जाना पड़ रहा है या गए हो तो या तो स्टूडेंट्स के थ्रू या तो फेलो स्टूडेंट्स। एक इंपॉर्टेंट चीज जो नॉर्मली पिछले 5-10 सालों से इग्नोर्ड रहती है वो है यूज ऑफ रेफरेंस बुक। एंड रेफरेंस बुक मतलब क्वेश्चन बैंक नहीं होता। क्वेश्चन बैंक ये टीचर ने दिया हुआ उसकी पढ़ाई के लिए दिया हुआ रिलेटेड मैटर है, उससे वो आगे बढ़ाते हैं। इट्स नॉट अ रेफरेंस। रेफरेंस बुक वो है जहां पे आपको ये कंसेप्ट जीरो से राइट फ्रॉम जीरो एक्सप्लेन की होती है और वहां से आपको अगर ये समझ में आता है तो दैट वुड बी अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ये एक इशू जो नॉर्मली आपको ध्यान रखना है कि अंडरस्टैंडिंग के लिए जो भी आपने क्लासेस किए होंगे या तो क्लास या तो रेफरेंस बुक इनका यूज करना है। साथ ही साथ में एक चीज जो है कि सीए इंस्टीट्यूट, क्योंकि हम सीए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, इंस्टीट्यूट का मटेरियल, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट में एक पार्ट होता है अंडरस्टैंडिंग इट कंप्लीटली थरोली। तो जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है उसका फोकस होना चाहिए। अगर आप एक सर्टन क्लास मटेरियल वगैरह यूज कर रहे हो तो एटलीस्ट ये देख लेना कि मॉड्यूल का सारा पार्ट उसमें कवर है या नहीं, क्योंकि अगर वो कवर है तो ही वो मटेरियल तुम्हारे लिए यूजफुल रहेगा। इंस्टीट्यूट अगर आपको एक स्टडी मटेरियल दे रही है तो उसको आपको कंप्लीटली थरोली फॉलो करना है। नॉट नेसेसरी आप वर्ड बाय वर्ड रीडिंग कर रहे हो, बट एटलीस्ट इतना इंश्योर कर लेना कि स्टडी मटेरियल का सारा पार्ट उन क्लास के मटेरियल्स में है या नहीं। नहीं है तो मार्क कर लो कि ये मटेरियल, ये प्रॉब्लम जो है ये स्टडी मटेरियल में है और हमें करना है। ये सबसे पहली चीज फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हो ये सारे कंप्लीट कवरेज के लिए। स्टडी ऑफ प्रोविजन ये स्पेसिफिकली लॉ के लिए यूजफुल हो सकता है आपको। अगेन प्रोविजंस पढ़ना मतलब सिर्फ एक्ट या सिर्फ नोट्स पढ़ना नहीं होता है। आपको अगर पॉसिबल, स्पेशली क्योंकि अभी यहाँ पे था मिक्स क्राउड है, बहुत सारे लोग, मतलब कोई फाउंडेशन के लिए कितने स्टूडेंट्स हैं? जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मतलब इंटर फाइनेंस बहुत सारे, तो नॉर्मली क्राउड उस तरीके से बटा है। यू यूजुअली इंटर या फॉर दैट मैटर फाइनल के स्टूडेंट्स ये ज्यादा बेटर समझ सकते हैं कि आप जब आर्टिकलशिप में होते हो तो आप डायरेक्ट एक्सेस में हो या इनडायरेक्ट एक्सेस में काम करते हो या किसी भी चीज में काम करते हो। प्रोविजंस पढ़ने के लिए आप एक्ट्स का यूज कर सकते हो, जो बेरा एक्ट्स पब्लिश होते हैं आप उनका यूज कर सकते हो, वो करना चाहिए। इंटर लेवल तक के स्टूडेंट्स के लिए शायद ये समझना थोड़ा मुश्किल होगा, जो एक्चुअली आर्टिकलशिप से जा रहे हैं अभी उनके लिए समझना रिलेटिवली इजी हो सकता है कि एक्ट्स का पढ़ना, इंटरप्रिटेशंस का यूज करना ये तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। इंटर लेवल तक के स्टूडेंट्स के लिए अंडरस्टैंडिंग उतनी ही इंपॉर्टेंट रहेगी जितनी आपको मॉड्यूल्स में, स्टडी मटेरियल में, कंसेप्ट में कवर है, उतना कवर करने की कोशिश करना। एंड
लॉजिक उसका कि ये पर्टिकुलर चीज क्या प्रिवेंट करती है, क्योंकि लॉ एज अ सब्जेक्ट जो है तो क्या प्रिवेंट करता है, क्या प्रमोट करता है, ये बेसिक क्वेश्चंस आपको आने चाहिए कि अगर लॉ मेकर्स ने कोई सर्टेन प्रोविजन रखा होगा तो कुछ तो लॉजिक हो सकता है उस चीज के पीछे, तो वो प्रोविजन क्या प्रिवेंट करता है या क्या इनेबल करता है। लॉ दो ही तरीके से होता है, या तो सही काम को प्रमोट करना या तो गलत काम को रोकना, ये दो चीजों से वो लॉ बनता है। तो वो क्या प्रमोट कर रहा है या वो क्या रोक रहा है, या मे बी आइदर बोथ, मे बी हो सकता है कि दोनों भी हो गए, तो आपको वो समझ। ये क्लियर है सबको? थर्ड, राइटिंग प्रैक्टिस, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्योरली एग्जाम ओरिएंटेड रहता है और जो इग्नोर्ड रहता है। जब हम यूजुअली ट्यूशंस में भी करते हैं तो हम पढ़ते रहते हैं, और राइटिंग प्रैक्टिस ये एक यूजुअल ऐसा होता है कि जो नहीं आ पाता, मतलब एक होता है समझना, एक होता है बोल के दिखाना, और एक होता है लिखना। अब लिखते वक्त थोड़ा सा आपके लैंग्वेज में वो मैच्योरिटी एक्सपेक्टेड होता है, वर्ड्स यहाँ वहाँ ना हो या टू द कॉन्टेक्स्ट रहे, इसके लिए जरूरी है कि राइटिंग प्रैक्टिस हो। इसके लिए पढ़ते वक्त अगर आपके पास, जैसे आप अगेन वही, अगर आप ट्यूशंस में हो, ऑनगोइंग हो, तो पढ़ते वक्त ही ये कोशिश करनी है कि जो भी टॉपिक है एटलीस्ट चैप्टर खत्म होता है उस चैप्टर के सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके लिखे जाने चाहिए। एट द इनिशियल स्टेज आप ये भी कर सकते हो कि आप देख देख के लिखो, मतलब मेरा पर्टिकुलर ये सजेशन रहता है, इसमें शायद किसी का ओपिनियन मैच भी ना हो, बट अगर आपको इनिशियल लेवल पे लिखने की तकलीफ है तो आप शुरू के 5, 10, 15 क्वेश्चंस, या शुरू के, मतलब हर चैप्टर के लिए मैं बोल रहा हूँ, हर चैप्टर के जो पहले 5 क्वेश्चन है ना, देख के लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भी ऐसा मटेरियल, जैसे फॉर एग्जांपल सीए इंटर लेवल पे अगर हम बात करते हैं, जैसे लॉ का मॉड्यूल है, लॉ का स्टडी मटेरियल, उसमें पीछे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, 10 एक क्वेश्चन नहीं, देख के लिखो, प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि लिखना ये इतना आसान नहीं होता है, स्पेशली अगर वो आपकी नेचुरल लैंग्वेज नहीं, मराठी, हिंदी, मारवाड़ी, गुजराती, ईरानी, जो भी हम लैंग्वेजेस में बात करते हैं, हम उनको पहले सुनते हैं और फिर बोलना होता है। इंग्लिश के केस में क्या है, हमको पहले दिखाया जाता है कि ऐसा कुछ तो भी है जिसको ए बोलना है, क्योंकि हमको वो तब तक पता नहीं, सो इट्स नॉट अ नेचुरल वे टू लर्न दैट लैंग्वेज, और ना ही हम उसको नॉर्मली बोलते हैं। और इसीलिए जरूरी है कि आपके रेगुलर राइटिंग में होना जरूरी है। अगर नहीं है और मैं सडनली आपको बोलूं कि इस चीज पे जाके बोल के आ या लिख के आ, तो पॉसिबल नहीं होता है। और इसीलिए जरूरी है कि थियरी सब्जेक्ट्स में आपका वो पैटर्न होना चाहिए। और क्या है, थियरी सब्जेक्ट्स का वेटेज अगर आप इवन जैसे इंटर लेवल पे देखते हो या फाइनल लेवल पे देखते हो, ऑलमोस्ट 50-50, जैसे इंटर लेवल पे लॉ, ऑडिट, एसएम, ईआईएस, ये सारे सब्जेक्ट थ्योरेटिकल आते हैं, फाइनल में भी ऑडिट, लॉ, ये सारी चीजें आएंगी आपको। इवन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में थ्योरी क्वेश्चन आता है, वो भी हमारे अगले स्लाइड पे कवर होगा ही, तो वो एक पार्ट। तो क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको लिखने चाहिए राइटिंग के थ्रू, रोज 5-10 क्वेश्चन एटलीस्ट, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। चैप्टर्स होते हैं तो चैप्टर्स की इमीडिएटली बात लिखो। एक और चीज जो राइटिंग स्किल में काम आ सकती है, जैसे नॉर्मली आजकल जो भी क्लासेस या ट्यूशन वाला सिस्टम होता है उसमें एक चार्ट का कंसेप्ट है ना, सबको आए होंगे, जो पहले ऑर्डर आई है, ऑर्डर के साथ चार्ट आए हैं, या ये भी स्टडी ओरिएंटेड चार्ट, मेमोरी चार्ट होते हैं ना। इट्स नॉट बैड थिंग, मतलब मैं उसको वैसा नहीं बोल रहा, इट्स अ गुड थिंग कि आपको कम टाइम में सिलेबस कवर करने के लिए या स्पेशली रिवाइज करने के लिए वो यूजफुल होते हैं। प्रॉब्लम ये है उन चार्ट्स के साथ कि तुम उनको पढ़ते हो, तुम उनको क्रिएट नहीं करते। अगर तुम उसके क्रिएटर होते तो तुम उसको बेटर समझ पाते। मतलब तुम अगर राइट फ्रॉम जीरो खुद होके ऐसे चार्ट बनाते हो तो तुमको वो हमेशा याद रह जाएगा अगर तुमने वो बनाया। अब इसमें एक टाइम कंस्ट्रेंट का इशू आ जाता है कि सर इतने सारे सब्जेक्ट और फिर हम खुद चार्ट बनाए, कैसे बनाए, कितने बनाए, या हमको वो आए नहीं आए, तो तुम रेडीमेड चार्ट्स की हेल्प लो, प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर खुद से एटलीस्ट वो लिखो। साथ में प्रोविजन जो भी आपका नोट्स रहता है वो मटेरियल रखना, एक साइड में चार्ट रखना और नोटबुक में लिखना एक बार ही से। और फिर तुमको क्रिएट करते करते 2-3 चार्ट होने के बाद तुमको ये भी ध्यान आ सकता है कि अरे ये कोई कंटेंट है किसी प्रोविजन का, किसी ग्रुप का जो चार्ट में कवर नहीं, फिर तुम वो उसको ऐड कर सकते हो। और ऐसी चीजें जब तुम खुद से करोगे तो तुम्हारे लिए वो रिकॉल करना ज्यादा इजी है। तो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए रेगुलर क्वेश्चन आंसर्स तो यूज करो ही, राइट, लाइक दिस। ये जो चार्ट्स वगैरह आते हैं ये काम करना, ये जैसे सेल्फ नोट जो लिखा है, खुद के नोट्स बनाना, ये आपके लिए काम आ सकता है कि आप नोट्स बनाओ। अगेन नहीं बना पाते तो कम से कम किसी के अगर बने हुए हैं, जैसे मैंने ये बोला चार्ट्स वगैरह, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। बट लिखना जरूर, एक बार तुम्हारे हाथ को, तुम्हारे दिमाग को आदत होनी चाहिए वो चीज लिखने की, तभी जाके उसका फायदा होगा, तब तक नहीं। ये समझ गए? एंड द लास्ट वन इज दैट यूज ऑफ की टर्म्स इन आंसर। अब
ये नॉर्मल क्वेश्चन जैसे वो आंसर्स में भी था कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन था कॉमन क्वेश्चंस में कि आईसीआई को हमसे क्या एक्सपेक्टेड है, मतलब वो एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव ये होता है कि हमने एज इट इज लिखा था, अब वो एज इट इज का कोई 100 कट टू कट ऐसा कंपैरिजन नहीं हो सकता, बट स्टिल मान लिया जाए कि एज इट इज लिखा तो इंस्टीट्यूट को हमसे क्या एक्सपेक्टेड है कि हम लर्न वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस, कॉमा बाय कॉमा, वैसे के वैसा याद करके लिखे, ये एक्सपेक्टेड नहीं है। बट जो की टर्म्स होती है किसी भी पर्टिकुलर प्रोविजन की या कंसेप्ट की या थ्योरी सब्जेक्ट की, वो टर्म्स तुम्हारे आंसर्स में आनी चाहिए। एंड अगेन उसके लिए सॉल्यूशन आपको यहाँ से ही मिल जाएगा। किस चीज से? राइटिंग प्रैक्टिस। ये एक चीज होती है जो नहीं हो पाती। जैसे आप प्रैक्टिकल चीजों के लिए सम सॉल्व करते हो, वैसे ही अप्रोच होना चाहिए। थ्योरी सब्जेक्ट का और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का अप्रोच थोड़ा अपोजिट हो जाता है। प्रैक्टिकल्स के लिए आप सॉल्विंग करते हो, थ्योरी के लिए आप रीडिंग करते हो। ज्यादा कर लिया कि सामने एक दो लोग होते हैं, एक दूसरे को पूछते हैं या एक दूसरे को तू ये पढ़ गया मैं ये पढ़ के आऊंगा फिर लर्न करेंगे टाइप, ऐसा टू द एक्सटेंट ये यूजफुल है। बट तुम एग्जैक्टली वो प्रैक्टिस करो जो तुमको फाइनल में फेस करना है। तो तुम जब एग्जाम हॉल में बैठे हो तुमको क्या करना है? ओरल देना है, क्या करना है? लिखना है। तो तुमने घर पे भी क्या करना है? उसको लिखना है। वो क्वेश्चन आंसर जब तक लिखे हुए नहीं रहते तब तक आपको ये चीज नहीं आ सकती। जब वो आंसर्स आप यूज करते हो, स्पेशली इस केस में एडवाइजेबल रहेगा कि आईसीआई का मटेरियल यूज करो। जो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हो उसके लिए आईसीआई का मटेरियल यूज करो, ताकि फिर आपके वो की टर्म्स आए जो उनके आंसर्स में रहते। फिर मटेरियल में जो स्टडी मटेरियल आया वो, उसके अलावा आरटीपीस होते, आरटीपी पता होगा सब, आरटी रिवीजन टेंशन पेपर, तो रिवीजन टेस्ट पेपर होते जैसा बोलते, मॉक टेस्ट पेपर्स होते हैं, पास्ट एग्जाम पेपर्स के अगर सजेस्टेड आंसर्स है तो वो मटेरियल आप यूज करो जिससे आपको ये की टर्म्स आपके आंसर्स में आएंगे। ये क्लियर है? तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू थियरी सब्जेक्ट्स। तो क्विकली जो अलॉटेड टाइम है उसके हिसाब से मुझे आगे बढ़ना है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में फिर से एक बार अंडरस्टैंडिंग ऑफ कांसेप्ट्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिहाइंड द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स इज ये कि समझना मतलब क्या करना, दैट यूज ऑफ रीजनिंग। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में हमारा एक नॉर्मल एटीट्यूड हो जाता है कि हमको पता है कि ये चीज यहाँ लिखनी है, फिर इसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ आता है। मतलब ये भी लर्न हो जाता है कि पेज से लेफ्ट में रहता है या राइट में रहता है। कुछ लोग अगर एक सर्टन नोटबुक में आदत हो जाए तो वैसा तुम उनको अंधेरे में दे दो, बोल देंगे कि इतने सेंटीमीटर पे लिखना है। हो सकता है, पॉसिबल है, बट एक चीज जो होनी चाहिए जो नहीं हो रही, दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीजनिंग। कि अगर तुम किसी चीज को इफेक्ट दे रहे हो या सर्टन चीज ऐड करते हो, लेस करते हो, डायरेक्ट टैक्स होंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस है जिसमें सम्स आते हैं, कॉस्टिंग हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, इवन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और अकाउंट्स जिसको हम बोलते हैं, कोई भी एक पार्ट होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीजनिंग। अगेन जब आप टॉपिक्स पढ़ते हो, तुम 10 सम सॉल्व करोगे और तुम उनको 11वां सम अगर मैं आपको इमीडिएटली दूं, 11 सम इमीडिएटली, तो आपको डेफिनेटली आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि तुमने 10 सम वैसे ही सॉल्व किए, 11वां सम तुमको रटा हुआ है कि ये इधर 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 इधर। फिर 2 महीने बाद वही सम अगर वापस दिया, सेम सम, सेम प्रॉब्लम, सेम क्वेश्चन, तो भी आंसर नहीं आता, क्योंकि तुमने वो प्रोसेस से गए बट रीजन नहीं समझे। तो इट्स एज इंपॉर्टेंट एज दैट कि अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हमने सर्टेन चीज को डेबिट किया है तो क्यों किया है, क्रेडिट किया है तो क्यों किया है, ऐड किया है तो क्यों किया है, माइनस किया है तो क्यों किया है, इवन डीटी में हमने ऐड बैक किया है तो क्यों किया है, अलाउ है नहीं है, ये सारी चीजें। इवन राइट फ्रॉम फाउंडेशन लेवल आल्सो, कि आपको अकाउंट्स, मैथ्स, ये जो सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस है तो वहां पे आपको क्या पता होना चाहिए? रीजनिंग। अगर रीजनिंग पता है तो ये काम बन सकता है। देन सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस फॉर रिवीजन। आपको जब आप टॉपिक फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो उस टाइम पे एक चीज कर लेनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, वास्ट सब्जेक्ट होते हैं, 10-12 चैप्टर्स, 12-15 चैप्टर्स होते हैं, और एग्जाम के टाइम में ये एक नॉर्मल स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1.5 डे का जो टाइम आपको मिलता है। से फॉर एग्जांपल आज अगर आप अकाउंट्स का पेपर देके आए तो इमीडिएटली 1.5 दिन बाद, मतलब या आज आप देते हो, कल का एक छुट्टी रहेगा, परसों वापस लॉ का पेपर रहेगा। इंटर के लिए अगर हम बात करें, फाइनल्स के लिए है तो आज एफआर का है तो 2 दिन बाद परसों एसएफएम का पेपर आता है। किसी दिन किसी चीज की छुट्टी मिल जाए तो अलग ही खुशी है, भाई एसएफएम को 2 दिन का टाइम मिल गया, ऐसा, या जिसको भी मिला होगा जैसा। सो पॉइंट ये है कि ये जो 1.5 डे का आपके पास टाइम मिलता है उसमें आप सारे चैप्टर्स पूरे नहीं कर सकते। तो जब आप पहले पढ़ रहे होते हो तो पढ़ाई करते वक्त नॉर्मली ये आइडेंटिफाइबल रहता है और ये आपको भी समझता है कि 5, 10 या 5, 6, 7, 8 कोई तो भी सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उनको मार्क करो जिसमें मेजॉरिटी एडजस्टमेंट्स कवर है, मेजॉरिटी एडजस्टमेंट। और ये तुमको पता है, तुम जब नॉर्मली ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हो
सर्टन टॉपिक पढ़ते हो तो ये 5-6 सब में सारे एडजस्टमेंट्स कवर होते हैं। तो क्या करना है ना, तुमको एग्जाम टाइम में जो 1-1.5 डे मिलता है उसमें वही सम्स रिवाइज करना है, वो सम्स रिवाइज करने और फिर जाना है। ये समझ लें। तीसरी चीज जो है, ये लिखा हुआ ध्यान में अगर आ रहा होगा, रिटर्न प्रैक्टिस ऑफ कंप्लीट सम। अब ये जो सम तुमने सिलेक्ट किए थे, अब क्या होता है ना, एग्जाम टाइम में पढ़ने का एक तरीका होता है जिसमें हम सम सॉल्व करते हैं तो वही हमारा P&L होता है, उसी के नीचे बैलेंस शीट होती है, ऊपर कुछ लिखा नहीं है। बट एग्जाम में हमको थोड़ा प्रिकॉशन लेके लिखना पड़ता है। तुम प्रैक्टिस करते हो, एकदम रफ में प्रैक्टिस कर लेते हो, सम आ भी जाते हैं। टैली होना मतलब छोटे बेसिक लेवल पे टैली होना, बड़े होने के बाद टैली का कोई संबंध नहीं रहता, राइट। फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए वो इंपॉर्टेंट है, फाइनल तक तो उस मोह माया से हम मुक्त हैं। बट जो सम तुमको सॉल्व करने रहते हैं, शुरुआत यहाँ से रहती, मतलब इवन जैसे जो लोग इंटर और फाइनल लेवल पे वो ये समझ सकते हैं, स्पेशली कॉस्टिंग, FM, डायरेक्ट टैक्स के प्रॉब्लम के लिए शुरू कहाँ से करना है। होता है ना ऐसा कि पहली लाइन क्या होनी चाहिए या कॉलम्स कितने बनाने। आप हमको बोल दो कॉलम कितने बनाने, फिर उसके आगे हम धड़ तो फिर वो इशू है। तो क्या है कि इसका रीजन ये होता है कि हम सम्स की प्रैक्टिस सिर्फ देख के कर लेते, कि आंसर देख लिया फिर प्रैक्टिस कर ली। तो जब तुम वो 1-1.5 डे जो भी तुमको मिल रहा है उसमें हर चैप्टर का एटलीस्ट एक सम, एक क्वेश्चन या हो सके तो 2 पूरे ड्रॉप करके, प्रॉपर ड्रॉ करके फिर तुमको जाना चाहिए। सबसे ज्यादा जो मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम होता है एग्जाम हॉल में, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम घर पे जब अकाउंट्स एक्सेट्रा किसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम ऐसे नहीं करते। हम एक ही पेज पे हमारे 10-15 सम हो जाते हैं, नोटबुक के पीछे वाले इसमें सब हो जाता है। तो अब उसके लिए सॉल्यूशन यही करना पड़ेगा कि तुमको जो 1-1.5 डे का, क्योंकि एग्जाम में जब जिन्होंने भी ये इंटर या फाइनल या इवन फाउंडेशन का एक बार भी एग्जाम अगर दिया है तुमने, तुमको पता है अकाउंट्स या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के पेपर में ये प्रॉब्लम आती है कि तुमको वो यहाँ से जो लाइन किधर ड्रॉ करो, 8 लाइन का लेजर बनाओ कि कम पड़ जाएगा, कि 10 लाइन का बनाओ कि ज्यादा हो जाएगा। ये होता है क्योंकि हम वो नहीं कर रहे हैं जो हमें फेस करना है। ये मिसमैच होने का रीजन क्या होता है, हमें एग्जाम में डिटेल सॉल्व करना है बट हम प्रैक्टिस डिटेल की कर ही नहीं रहे। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे वो सम्स की, जो भी सिलेक्टेड पार्ट रहेंगे, तो उन प्रैक्टिस आप पूरा सॉल्व करके करोगे तो बेटर है। इवन ड्यूरिंग द एग्जाम गैप, जो एग्जाम का गैप है, एटलीस्ट एक प्रॉब्लम हर सम का आपको डिटेल सॉल्व करके करना चाहिए। दैट वुड बी बेटर फॉर योर टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम। फिर वहां पे आपको उस चीज के लिए रुकना नहीं पड़ता कि मैं कितना और क्या ड्रॉ करूं, नहीं तो वहां जाके फिर सरप्राइज। तो ये एक चीज। देन मार्क द डिफिकल्ट क्वेश्चन एज दे कम। पढ़ते वक्त ही ध्यान रख लो कि ये क्वेश्चंस तुमको डिफिकल्ट लगते हैं। क्या है, वापस वही जो थ्योरी के लिए बोला कि कोई चीज नहीं समझी तो हाँ देख लेंगे बाद में, वैसा नहीं करना। अगर कोई डिफिकल्ट सम है तो मार्क करके रखो ये डिफिकल्ट है, ताकि बाद में तुम उसको कवर कर सको। एंड थ्योरी इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, ये तो इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें से आपको 15-16, जैसे इंटर के पेपर में अगर आप देखोगे कॉस्टिंग, बाकी सर तो जानते हैं अच्छे से, बट 16 मार्क का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको थ्योरी लिखनी होती है और ये थियोरेटिकल पार्ट इग्नोर रह जाता है। तो आपको वो भी देखना है चाहिए कि जो थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिकल के केस में थ्योरी क्वेश्चंस रिलेटेड टू सम्स ही होते हैं, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी टफ नहीं है। तो जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे कम टाइम में एक्चुअली उसको कवर कर सकते हैं। एंड देन एग्जाम में लिखोगे तो फिर आपको वो बेनिफिट हो सकता है। जो थ्योरी क्वेश्चंस में भी आपको श्योर सर्टेन अमाउंट ऑफ मार्क्स आ सकते हैं, जो फिर प्रैक्टिकल में गलत हो गया तो तकलीफ होगी। तो ये ओवरऑल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए स्पेसिफिकली क्या होना चाहिए वो यूजुअली पार्ट था। नाउ द नेक्स्ट थिंग कवर्स कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स के जो हमने इनवाइट किए थे। दैट कैन वी राइट आंसर्स इन सिंपल लैंग्वेज इन सीए फाइनल पेपर। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन था कि हम सीए फाइनल पेपर में सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं क्या। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इफ अ पर्सन कैन अंडरस्टैंड योर सेंटेंस इट इज सिंपल इनफ। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा सेंटेंस अगर उसको समझ में नहीं आया तो वो सिंपल नहीं, ये ध्यान रखना। फिर जो की टर्म्स की हमने बात की पिछले स्लाइड में थ्योरी सब्जेक्ट्स की, वो एक्सपेक्टेड रहेगा कि अगर किसी कंसेप्ट से रिलेटेड की टर्म्स है, जैसे ईआईएस का जो पेपर होता है इंटर लेवल पे, इवन लॉ में भी बहुत बार की टर्म्स आ सकते हैं, लीगल टर्म्स आ सकते हैं, तो वो पार्ट तुम्हारे आंसर में आ गए, दैट इज इनफ। लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, हमको शशि थरूर नहीं बनना है। तुम सिंपल लैंग्वेज में उसको लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। सिर्फ वो की टर्म्स आने चाहिए और सिंपल मीन्स उसको समझ में आना चाहिए। अगर उसको ये देखना पड़ गया कि तुम एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हो तो फिर ये प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ इलेक्टिव सब्जेक्ट ऑन करियर अपॉर्चुनिटीज। ये सीए फाइनल के लिए रिलेवेंट क्वेश्चन था कि फाइनल में आपको एक इलेक्टिव सब्जेक्ट आता है जिसका
करियर अपॉर्चुनिटीज पे इम्पैक्ट क्या हो सकता है? अभी द आंसर इज यस एंड नो, बिकॉज आपको ये जो भी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में दिए, जैसे डायरेक्ट टैक्सेशन होता है, इंटरनेशनल टैक्सेशन है, आपका एक्सपर्टीज या करियर एक्सपर्टीज सिर्फ उस फाइनल के पेपर की वजह से जज नहीं किया जाता कि आपने सिर्फ फाइनल में वो एग्जाम दिया इसीलिए आपको वो करियर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। और अगर तुमको एक्सेल करना है, ये ध्यान रखना, तुम सीए पास हो जाते हो मतलब तुम हर चीज में 100% एक्सेलेंट हो, ऐसा जरूरी नहीं। तो उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज भी होते हैं बहुत सारे, जैसे अगर सिस्टम ऑडिट रिलेटेड है तो डीसा होता है, बहुत सारे कोर्सेज आईसीआई खुद कंडक्ट करता है, कुछ इंटरनेशनल कोर्सेज भी करने, जैसे अगर आपको फाइनेंस में काम करना है तो आप सीएफए कर सकते हो, तो सीएफए का ऑप्शन होता है, या बाकी सारे ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं, होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेशन के पोस्ट ग्रेजुएशन सॉरी पोस्ट डिग्री कोर्सेज होते हैं जो आईसीआई खुद ही कंडक्ट करता है, इवन डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इवन इंटरनेशनल टैक्सेस। तो वो सारी चीजें अगर आपको करियर पॉइंट ऑफ व्यू से परस्यू करनी है तो आप पोस्ट क्वालिफिकेशन भी सोच सकते हो। जस्ट बिकॉज कि आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन सर्टन सेक्टर में काम करने के लिए ही वो इलेक्टिव सब्जेक्ट लेना है, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा स्मार्ट भी रहना है कि आपको वो एग्जाम पास भी करनी है। फिर उसके बाद तो ऑप्शन है, और ये अंडरस्टैंडिंग लेके मत चलो कि भाई सीए खत्म तो एजुकेशन खत्म, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद भी तुमको चीजें लर्न तो मतलब सीखनी तो पड़ेगी ही नई चीजें, क्योंकि चेंजेस होते रहेंगे, यू नीड टू बी अपडेटेड। तो वो पार्ट आप तब भी कवर कर सकते हो। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, हाउ मेनी रिविजन्स डू यू नीड? फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिवीजन। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में आना चाहिए कि रिवीजन क्या है, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि जब तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हो उसको भी लोग रिवीजन बोलते हैं कि एक रिवीजन हो गई। सो ये एक्चुअली सब्जेक्टिव हो सकता है, पर्सन टू पर्सन अलग हो सकता है, इट मे बी डिफर फॉर वन पर्सन टू अनदर पर्सन, बिकॉज क्या है सबका, मेरा ये सजेशन रहता है कि ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कितना टफ, जहाँ टफनेस या डिफिकल्टी आप फेस करो, नॉट द एंटायर वर्ल्ड। मतलब ऐसा है बाकी दुनिया जहाँ टफ करी, मतलब किसी को एक सब्जेक्ट टफ जाता है तो तुमको भी जाना चाहिए, ऐसा है नहीं। तो तुमको अगर सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है तो उसके साथ तुमको ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, तुम उसके साथ कंफर्टेबल हो, तो मेरे हिसाब से एक नॉर्मल स्टडी, फुल स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट प्लस वन रिवीजन। आई रिपीट कि मैं पहले स्टडी को रिवीजन में काउंट नहीं कर रहा, एक प्रॉपर वन स्टडी ऑफ द एंटायर सब्जेक्ट प्लस वन प्रॉपर रिवीजन वुड बी मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक सीए एग्जाम। बट वो प्रॉपर होना चाहिए, ये जरूरी है कि आप उसका कवरेज कैसा करते हो, क्या करते हो, इसमें चीजें मैटर करती हैं। और अगर आपको सर्टेन टॉपिक्स डिफिकल्ट लगते हैं तो आप टॉपिक वाइज भी ये कर सकते हैं। हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। अब ये डिस्ट्रैक्शंस होना, या एक और सब्जेक्टिव चीज आगे आएगी, कंसिस्टेंसी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था रिपीटेडली कि हम कंसिस्टेंट कैसे रहे। तो ऐसा है कि कंसिस्टेंसी या डिस्ट्रैक्शंस अपने अपने हिसाब से डिफाइन होते हैं कि क्या किसी के लिए क्या इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रैक्शन में कैसा है कि एक नॉर्मल डिस्ट्रैक्शन जो हो सकता है कि जैसे आईपीएल के मैचेस है, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन, आईपीएल के मैचेस है, घर में किसी की शादी है, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। तो अब ये सारे क्या है, मतलब सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, फिर मैसेज पे बात करना इंपॉर्टेंट होता है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन कौन से डिस्ट्रैक्शन से जा रहा है। अब सिंपल है कि तुम्हारे गोल्स को कितना, ये क्लियर केस ऑफ प्रायोरिटी है, मतलब इसमें किसी को पूछना या बताना जरूरी नहीं है। मतलब क्या है कि ये क्लियर केस ऑफ प्रायोरिटी, तुमको प्रायोरिटीज डिसाइड करनी कि ये तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैं इस चीज में बिलीव रखता हूँ, मैं मेरे हिसाब से गाइड कर रहा हूँ, आप उसको जिस मतलब आपके लिए वो एग्जैक्टली कितना सही वो जजमेंट आपको लेना पड़ेगा। बट सिंपल है, अगर मुझे सीए बनना मेरे लिए प्रायोरिटी है, सो नथिंग एल्स कैन कम इन बिटवीन। तुम बोलोगे सर हम तो बच्चे हैं, नादान है, थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो फिर जो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते वो आगे निकल जाते हैं, फिर तुमको रुकना, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं होना या कैसे नहीं होना ये तुम इंडिविजुअली डिसाइड, कोई तुमको उस चीज के लिए बोल नहीं सकता। मतलब अगर तुमको ऐसा है कि घर वाले ऐसा एकदम स्ट्रिक्ट बुक, मतलब बुक इधर हिलने का नहीं, उधर हिलने का नहीं, हाथ में पानी का ग्लास आएगा वहां से कर दे, तुम सोचते सोचते तो कहीं जा ही सकते हो ना। डिस्ट्रैक्ट होने के लिए तुमको उठ के कहीं जाना है ऐसा जरूरी नहीं, बैठे बैठे दुनिया घूम के आ सकती है, तो फिर क्या ही करोगे। तो ये ऐसा है कि तुम्हारा डिटर्मिनेशन लेवल ये डिटरमाइन करता है कि तुमको वो चीज कितने मतलब बाय हार्ट चाहिए, उस चीज पे डिपेंडेंट है कि तुम कितना डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। तो वो प्रायोरिटीज का केस है जो मेरे हिसाब से सब्जेक्टिव रहेगा इस चीज का आंसर। प्रायोरिटीज फिक्स करो फिर काम करो। हाउ टू बैलेंस आर्टिकलशिप एंड स्टडीज, ये फाइनल के लिए रहता है विथ टू मच डिफिकल्टी, बट इट कैन बी डन। आपके आर्टिकलशिप के जो ऑफिस टाइम होते हैं या सीजन टाइम होते हैं, रिटर्न आईटी सीजन, जीएसटी सीजन, रिटर्न सीजन, बैंक ऑडिट सीजन,
तो जो भी अपनी स्टडीज है इसमें एक सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स आप फिक्स कर सकते हो, जैसे कुड बी लाइक 3 आवर्स 4 आवर्स ड्यूरिंग द ऑफिस, नॉट ड्यूरिंग द आर्टिकल शिफ्ट टाइम, कि आप एक 3 घंटे 4 घंटे का एक प्रॉपर शेड्यूल बना सकते हो जिसमें आप या तो लेक्चर्स होंगे या रिविजन्स होंगे, उसको प्लान कर सकते हो आइदर इन द मॉर्निंग टाइम और इवनिंग में। अब ये भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है या आया भी था जो डायरेक्टली यहाँ पे कवर नहीं कि सर दिन भर आर्टिकल शिफ्ट करने के बाद फिर थक जाते हैं, फिर हमसे कैसे मेहनत होगी। बस वापस वही है, डिसाइड योर प्रायोरिटीज। थकना है तो फिर दूसरे दिन सुबह करो, सर इतनी सुबह कौन उठेगा। तो वापस वही है, डिसाइड योर प्रायोरिटीज में। उसके आगे ये सब्जेक्टिविटी है जो पर्सन टू पर्सन खुद टैकल करनी पड़ती है, और अपने प्रॉब्लम आपको खुद को ही टैकल करनी है। कोई एक्सटर्नली आपको उस चीज के लिए मोटिवेट नहीं कर सकता। मोटिवेशन ढूंढना है तो इनर मोटिवेशन से ही काम बनता है। कोई कितना भी मोटिवेशन स्पीक कर दे या स्पीकर आ जाए, कितना भी बड़ा बोल दो, वो इफेक्ट टेम्पररी रहेगा। ज्यादा से ज्यादा 2 चीजें ऐसी बोल सकती है जो तुमको मोटिवेट कर दे, और वो तुम पकड़ के बैठो और फिर आगे निकल गए तो अच्छी बात है। तुम सुनते हो, क्लासरूम के बाहर जाते जाते फिर सारा मोटिवेशन डिस्चार्ज हो जाता है। तो मोटिवेशन के लिए या डेडिकेशन के लिए आपको थोड़ा सा इनर विल की जरूरत है। ये सेम थिंग, हाउ टू मेंटेन अ कंसिस्टेंसी इन स्टडीज। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछना पड़ रहा है सो यू आर नॉट कंसिस्टेंट, राइट। तो वापस वही बात है कि डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, ये थोड़े सब्जेक्टिव इश्यूज है जो आपको पर्सन टू पर्सन टैकल करने पड़ेंगे। हाउ टू मैनेज योर टाइम इन एग्जाम हॉल, ये एक इंपॉर्टेंट इशू है जिसको आपको टैकल करना चाहिए कि 3 घंटे का पेपर टाइम होता है। एक बार तो भी आपकी टेस्ट प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। टेस्ट सीरीज का यूज करो। अगर आप टेस्ट सीरीज का ये ऑफिशियली फॉर्मली ज्वाइन नहीं भी करते हो तो मॉक टेस्ट होते हैं इंस्टीट्यूट के, वो दे सकते हो। और वो दिए हुए टाइम में आपको वो पूरा सेशन जो है वो मैनेज करना पड़ता है। इसके लिए आपको घर पे वो प्रैक्टिस होनी चाहिए कि एग्जैक्टली वो 3 घंटे में क्या मैनेज करना है। तो एक बार ही सही आपकी राइटिंग प्रैक्टिस या टेस्ट सीरीज एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आपके शेड्यूल में अलाउ होती है वो होनी चाहिए। एग्जाम टाइम के पहले 15 मिनट में जब आपको आंसर क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसमें नॉर्मली आपको सिलेक्ट कर लेना चाहिए कि क्या आता है। अभी अगेन इसमें मेरा एक ओपिनियन है, एज अ स्टूडेंट ये शायद तुम्हारे लिए काफी डिफिकल्ट हो, बट ये करना एडवाइजेबल रहेगा कि जितना पेपर तुमको आ रहा है उस पर फोकस करो। अगर ऐसा हो रहा है कि तुम जब 100 मार्क का पेपर देखते हो और उसमें तुमको 20 मार्क के या 30 मार्क के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा एलियन वाला फीलिंग है कि यार ये कहाँ से आ गया, ये तो देखा भी नहीं, मतलब ये तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन से चैप्टर से, वो छोड़ दो। तुम्हारा टारगेट ये है कि जो 70 मार्क का पेपर तुमको आ सकता है पॉसिबली, उसमें से तुमको 50 मिल सकते हैं, 60 मिल सकते हैं, उस पर फोकस करो। इवन वर्स्ट केस सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है किसी स्टूडेंट के केस में कि पूरा पेपर ही मतलब ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, तो जो समझ में आ रहा है वहां से शुरू करो। 10 मार्क का पेपर लिखो, धीरे 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 लाइनअप होते रहेगा। हाँ, इसमें ये प्रॉब्लम जरूर हो सकती है कि पूरा शायद पेपर अटेम्प्ट ना हो पाए, जो कि प्राइमरी टारगेट होना चाहिए कि 100 मार्क का पेपर होना ही चाहिए। 100 मार्क का पेपर हो जाता है तो आपको पूरा मार्क्स मतलब या पासिंग होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। बट अगर नहीं आ रहा है तो पहला फोकस उन क्वेश्चंस पे करो जो आपको आ रहा है, क्योंकि अगर मैं 20, 30, 40 मार्क्स का पेपर लिख पाता हूँ तो अपने आप धीरे 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 वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और कोई चीजें जो आपको नहीं याद आ रही थी वो भी एक सम सॉल्व करते करते सडनली कोई क्रॉस लिंक होगा तो वो ध्यान में आता है, अरे हाँ ये भी तो आ सकता है, और फिर उस तरीके से तुम उस पेपर को कंप्लीट करने की कोशिश कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना, सम्स बड़े हैं या नहीं ये भी देख लेना। जैसा मतलब मैं मेरे पर्सनल एग्जाम अटेम्प्ट से बोल सकता हूँ कि जब मैं आईपीसीसी लेवल पे था इनकम टैक्स केस में, कोई बेसिक एक बड़ा 16 मार्क का एक ही सम आया हुआ था जिसमें ऑलमोस्ट 4-5 हेड के एडजस्टमेंट थे। तो मेजॉरिटी बैच ने इंक्लूडिंग मैंने किया, तो वो शुरू किया था, खत्म कोई नहीं कर पाया उसको। और तब तो ये सजेस्टेड आंसर का ऐसा रिवाज भी नहीं था, कोई उसको खत्म नहीं कर पाया अनलेस किसी प्राइवेट टीचर ने उधर कहीं पे गूगल पे वगैरह इधर उधर पोस्ट किया, तब तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया उसको। 16 मार्क का था, 4 पेज का तो सम था, तो वो ऐसा लग रहा था अब खत्म हो गया, तब खत्म हो गया, तब खत्म हो गया, तब खत्म हुआ, और प्राइमरीली इजी लग रहा था तो शुरू भी कर दिया। फिर आधा घंटे के बाद समझ में आया कि अपने से ना हो पाएगा, उसको छोड़ा और फिर। तो ये एक चीज अभी अच्छी हो रही है कि तुमको 15 मिनट पहले पेपर मिल रहा है असेसमेंट करने के लिए, तो जो आता है वहां से शुरू करना और फिर पेपर को मैनेज करना, और एफर्ट वही रखना है कि तुमको 100 मार्क का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना, तो ये पॉसिबल है। इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ स्टडी काफी ज्यादा है। सिर्फ लोगों के लिए सेल्फ स्टडी का डेफिनेशन अलग होता है, भाई क्लासेस खत्म होंगे फिर सेल्फ स्टडी, ऐसा नहीं होता है। सेल्फ स्टडी मतलब तुम खुद से पढ़ रहे हो, घर पे पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, कहीं पे भी पढ़ रहे हो, दैट इज अ सेल्फ स्टडी। तो स्टूडेंट्स का एक पार्ट होता है कि हम क्लासेस खत्म होने देंगे फिर आगे देखेंगे, वो काम नहीं करते। आपको
पढ़ने के साथ ही, मतलब जब आपके क्लासेस, ट्यूशंस एक्सेट्रा जो भी चल रहा है उसके साथ ही पढ़ना होता है। तो सेल्फ स्टडी का स्टार्टिंग पॉइंट मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, दैट इज राइट फ्रॉम द डे वन। अगर डे वन से स्टार्ट हो रहा है तो मेरे हिसाब से ये डुएबल है। फिर सेल्फ स्टडी कब स्टार्ट होती है उसका काफी बड़ा इशू। हाउ टू सिक्योर रैंक इन फाइनल्स, वो विशाल बेटर बता पाएंगे, थोड़ी देर में वो इंटरेक्ट करेंगे तो वो इसका आंसर जरूर देंगे, हाउ टू रैंक इन सीए फाइनल्स। बट अगेन द सजेशन, सारे पेपर्स पूरे लिखना, पूरे कंसेप्ट करना, कुछ भी पार्ट ऑप्शन में नहीं छोड़ना। अगर आप ऑप्शन में छोड़ने पे आए हो तो फिर आप शायद ही अचीव नहीं कर पाओ। तो कोई भी चीज ऑप्शन में नहीं छोड़ना, ये सबसे पहला रूट रहेगा टू स्कोर रैंक इन फाइनल्स या फॉर दैट मैटर एट एनी लेवल। अगर आपको रैंक स्कोर करना है तो आप ये नहीं कर सकते कि मैं ये टॉपिक नहीं कर रहा, ये नहीं कर रही, वो नहीं चलेगा, आपको पूरा ही कवर करना। Now, does presentation or handwriting matter? To the extent, yes, theory papers में ये मैटर करता है कि again it has to be at least readable। अगर वो readable नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, समझ रहे? हैंडराइटिंग सुंदर होना जरूरी नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रीडेबल हैंडराइटिंग एंड सुंदर हैंडराइटिंग। तो अपने वो नहीं चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, दैट वुड बी सफिशिएंट। इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीआई स्टडी मटेरियल हम ऑलरेडी कवर कर चुके जब हम थ्योरी वाला पार्ट कवर कर रहे थे कि स्टडी मटेरियल से पढ़ना जरूरी हो जाता है और उसके बिना काम नहीं हो सकता। एंड द लास्ट थिंग जो कि मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, रीजंस ऑफ फेलिंग इन सीए एग्जाम। जब हम सोच रहे हैं कि हमें कैसे ये एग्जाम पास करना है, उसके पहले हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि फेल क्यों होता है। अनफॉर्चुनेटली अगर किसी भी स्टूडेंट को कभी भी किसी भी एग्जाम में, अगर जैसे हम समझ सके इस भाषा में, अगर मैं बोलूँ अटेम्प्ट लगा है, ये समझ जाता है, पास फेल बोलना थोड़ा, अटेम्प्ट लगा, तुमको पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए कि क्यों, और वो सारी चीजें तुम्हारे नो वाले डायरेक्टरी में होनी चाहिए, तब जाके तुम पास हो सकते हो। देयर हैज टू बी अ मल्टीपल वेज टू गो थ्रू सर्टेन थिंग्स। तो वो सारी चीजें अवॉइड करनी है जो आपको फेलियर की तरफ लेके जा रही है, अपने आप सक्सेस की तरफ जा सकते हो। तो कोई भी एक चीज, जैसे किसी ने डिस्ट्रैक्शन का क्वेश्चन पूछा, किसी ने कंसिस्टेंसी का क्वेश्चन पूछा, अगेन ये जो जनरल चीजें की है, तो उसके लिए स्टेप्स लेना स्टार्ट करो। अगर आप फील कर रहे हो कि आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, दैट कि कैसे डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो आइडेंटिफाई करो कि क्या चीज तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है। इफ इट सोशल मीडिया, डिलीट ऑल द अकाउंट्स। समझ गए? ये सिंपल सी बात कि अगर ये सोशल मीडिया है जो तुमको ये क्वेश्चन लेना है कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, तुमको दिख रहा है, तो वो जो रीजन है वो एलिमिनेट करो। तुम सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट होते हो, रील देखना शुरू करते हो और पता चला कि सुबह 6 बज गए ऐसा, तो ये जो एक्सपीरियंस, इस पे भी रील आता है और वो रील देख के भी हमको समझ में नहीं आता कि अरे हाँ 2 घंटे हो गए। लोग इस पे भी रील बनाते हैं, दैट मैं स्क्रॉलिंग थ्रू रील्स एंड देन मम्मी ने उठा दिया सुबह 6 बजे टाइम ऐसा, तो उस पे भी रील आता है, फिर भी हम नहीं सुधर रहे। तो ये क्लियर केस ऑफ डिस्ट्रैक्शन है, तो उसके रीजंस एलिमिनेट करो, डिलीट ऑल अकाउंट्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेप्स एक्सट्रीम हो सकते, मतलब मैं उस चीज में बिलीव रखता हूँ कि तुम एक्सट्रीम स्टेप ले सकते हो, लेने चाहिए। अगर तुम्हारे लिए गोल इंपॉर्टेंट है तो एक्सट्रीम स्टेप लेने चाहिए। तुम सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, सारे सोशल मीडिया डिलीट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुमको लगता है कि सर्टन दोस्त या एक्सेट्रा उनके साथ टाइम पास होता है, मिलना बंद करो। तुम्हारे गोल्स, तुम्हारी प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट है। कोई और कुछ कर रहा है, फिर दोस्त के लिए इतना नहीं किया, नहीं, स्ट्रेट फेस से नहीं बोलना सीखो। घर वाले बोलते हैं अरे नहीं शादी में जाना पड़ेगा, नहीं जाना है, एग्जाम इंपॉर्टेंट है, फिर वो तुमको तुम्हारे चीजें गिनाएंगे। टीवी देखते टाइम नहीं होता तेरे को, आईपीएल देखते मत देखो, सिंपल। उनको बोलना केबल बंद कर दो, बी सेल्फिश, घर का केबल खुद ही काट के फेंक दो। ये एकदम अनरीजनेबल साउंड करता है, एकदम एक्सट्रीम साउंड करता है, मतलब मैं मेरे हिसाब से इनको सही मानता हूँ। मैं इसलिए, अगेन ये सब्जेक्टिव है, हर किसी के पास अपना अपना ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन है अगर मुझे पास होना है, मैं खुद ही केबल कनेक्शन काट के फेंक दूं, केबल वाले को धमका दो इधर आने का नहीं, पूरे घर के सीरियल बंद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सट्रीम स्टेप लेने पड़ते हैं अगर तुमको ये डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। इट्स हार्ड नॉट टू डू समथिंग व्हिच यू लाइक वेरी मच। तुमको बहुत पसंद है वो चीज, और या तुमको बहुत रिलीफ मिलता है और फिर भी नहीं करनी, तो इट्स हार्ड, फिर करनी पड़ती है, तुमको थ्रू जाना पड़ेगा। तो जो भी रीजंस तुमको लगते हैं फेल होने के, या जो नहीं करने वाली चीजें थी, कि प्रैक्टिस नहीं करना, डिस्ट्रैक्ट हो जाना, कंसिस्टेंसी नहीं होना, कंसिस्टेंसी सेट करने के लिए तुम नॉर्मली शेड्यूल्स बना सकते हो। कि मैं जिस तरीके से एडवाइस करता हूँ, यूजुअली मेरा एडवाइस रहता है कि अगर तुम पढ़ाई शुरू करो
जैसे एक ये भी क्वेश्चन मतलब कंसिस्टेंसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि हाउ टू सिट फॉर लॉन्ग आवर्स। जस्ट सिट, डोंट मूव। पानी लगता है साथ में रखो, सिंपल। मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए, तो पास में नहीं रखा तो भी चलता है, स्विच ऑन रखा कि ज्यादा ध्यान रखता है। साइलेंट करना ये गरीब ऑप्शन है। साइलेंट कर देते हैं, वो उधर से चमकता है, जैसे वो उधर चमकता है तुम्हारी आंखों में चमक आ जाती है। चलो अब ग्रुप पे हाई तो बोलना ही पड़ेगा, ऐसा ऐसा वैसा ना। अब मैं ग्रुप पे बोल दिया, जिसको जैसा बोल तो जो भी है, तो वो चमकता है। तुम बोलोगे सर उल्टा करके रखेंगे, आधे लोगों ने इमेजिन कर लिया कि उसकी साइड से ऐसा लाइट आता है। मेरे बोलने के पहले तुमने वो इमेजिन कर लिया। दैट इज हाउ इट इज डिस्ट्रक्शन। वो होना ही नहीं चाहिए। बैठो एक जगह। अगर तुम शुरू वाले फेज में मतलब सेल्फ स्टडी के या क्लासेस खत्म हुए और कंटिन्यू स्टडी के तुम इनिशियल फेज में हो, तुम दो घंटे का टारगेट सेट करो कि 2 घंटे यहाँ से उठना नहीं। सारे सब्जेक्ट बाजू में लेके बैठो, सारे सब्जेक्ट्स एटलीस्ट इन इनिशियल फेज। पहला सब्जेक्ट हो गया, 15 मिनट में बोर हो गए, दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, आईसीआई के रिवीजन जो भी होंगे फिर से घुमा के आ जाओ। कम नहीं आईसीआई के पास, वो कम नहीं है इसीलिए तो तुम यहाँ बैठे हो। ये तो है कि बहुत सारा है, फिर क्लास का मटेरियल, आईसीआई का मटेरियल से थप्पी लगा के बैठे तो तुम्हारे ऊपर भी आ सकते हो। तो साइड में रखा के बैठो। 2 घंटा उठना नहीं मतलब नहीं, समझ गए? नहीं तो क्या है, पानी भी नहीं सब बाजू में लेके, नहीं तो पानी पीने के लिए कैसा है कि हम घर से एक रूम से, हमारे रूम से पानी पीने के लिए उठते हैं, फिर ऐसे उठते हैं। जैसे ही हॉल में टीवी चालू होता है, मैच चल रही होती है या कोई तो भी प्रोग्राम चल रहा है, कोई तो भी घर पे देख ही रहा है, फिर ऐसे 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 धीरे धीरे वहां से जाते हैं, फिर पानी पी लेते, फिर वापस आधा घंटा लग जाता है रूम तक आने। ये होता है। अच्छा, रूम पे घर वालों की ये कहानी, लाइब्रेरी वालों की कोई और कहानी होती है। लाइब्रेरी वाले चल चाय पी के आते हैं, वहां से शुरू होता है, तूने ये पढ़ा क्या, ये वो पूछता है, और फिर उसके बाद 3 घंटे बाद पता चलता है तुमने पिछले 3 घंटे में कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ ये डिस्कस किया कि ये पढ़ा क्या। उससे सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। कंसिस्टेंट, इट हैज टू बी कंसिस्टेंट। 10 बजे वो बैठे हैं पढ़ने के लिए, 12 बजे तक नहीं उठे, एंड इंक्रीज द टाइम ग्रेजुअली। 12 का 12:15, मतलब एक पहले दिन 2 घंटे बैठे तो 2 घंटा 10 मिनट, टेक अ स्मॉल स्टेप। 2 घंटा 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, और ऐसे 3 घंटे के एटलीस्ट 3 या 4 स्लॉट तुम्हारे होने चाहिए पूरे 24 घंटे। इट हैज टू बी एग्जैक्टली रिवर्स कैलकुलेशन। तुम्हारे पास जिंदगी में 24 घंटे हैं, सबके पास वही 7 घंटा सोना है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, साइंटिस्ट प्रूव कर चुके हैं। बचे 17 घंटे, खाने पीने के लिए बचते हैं 2-3 घंटे, सब कुछ। और अगेन मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक्सट्रीमिस्ट हूँ, मैं एक्सट्रीम चीजों पे बिलीव करता हूँ। तो 3-4 घंटे अगर तुम्हारे चले गए, 17 में से 4 घंटे अगर वहां चले गए तो बचे कितने? 13। 3-3 घंटे के 4 स्लॉट होने के बाद भी 1 घंटा बच जाता है। और अगर ये नहीं हो रहा है मतलब हम सही स्टेप पे नहीं जा रहे। तो सही स्टेप पे जाने के लिए फिर तुमको ये सोचना पड़ेगा और ये एक्सट्रीमली फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ा सा खुद के साथ हार्श होना पड़ता है, उसके बिना नहीं आता। खुद पे दया दिखाना बंद करो कि ऐसा हो गया, ये हो गया, फिर 3 घंटे से बैठे, हाथ दुख गया, पैर दुख गया, कोई नहीं, चल रहे सब कुछ, बॉडी पार्ट सारे चल रहे हैं, फुल कैपेसिटी पे काम करें, ये करो तो होगा। एक्सक्यूज मत छोड़ो कि खुद को किसी को, यार घर वालों ने बोला इसलिए जाना पड़ा, मत जाओ। घर से तो नहीं निकलेंगे, ज्यादा से ज्यादा गालियां ही देंगे ना, इतना क्या पढ़ाई का नाटक कर रहा है, कर रही है, कर रहे, सुन लेने का, थोड़ा निगर रट मराठी समझा तो ठीक। तो ये यूजुअल सजेशन है। तो ये सारे रीजंस जो तुमको डिस्ट्रैक्ट करते हैं या किसी भी चीज की वजह से तुमको लगता है कि तुम पीछे आ रहे हो, तो फिर तुमको ये सारे डिस्ट्रैक्शंस, ये सारी चीजें हटानी है तो पॉसिबल है मेरे हिसाब से, फिर ये डुएबल हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक लास्ट हमेशा से ये रह जाता है किसी भी स्टूडेंट का कि सर हमने तो बहुत किया था, या आपने जो बोला हुआ है हर चीज हमने करी हुई है, करी होने के बाद भी हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको अचीव नहीं कर पाए, या कुछ हो गया, या सर्टन क्या है यहाँ से आगे किसी की जर्नी कैसे भी जाएगी, या इस पर्टिकुलर सेशन की वजह से बदलेगी नहीं बदलेगी। एक चीज तुम ध्यान रख सकते हो कि तुम ट्राई कर रहे हो तो ये बेटर है। दिन के आखिरी में तुमको ये पूछना चाहिए खुद को क्वेश्चन कि आज मैंने मेरे गोल अचीव करने के लिए कुछ ट्राई किया है क्या। अगर उसका आंसर यस है तो खुशी खुशी सो लो। अगर ट्राई नहीं किया है और वैसा ही दिन निकाल दिया है तो मेरे हिसाब से फिर शर्म के मारे शायद ही नींद आए। तो ये अप्रोच रखो अपनी लाइफ में, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, बड़े बनोगे,
ये होगा। और सक्सेस गारंटीड नहीं होता है, सक्सेस गारंटीड नहीं हो सकता, बट इतना है कि ये सारे प्रोसेस से, सारे डिफिकल्टी से तुम लड़ना सीख सकते हो, ये जरूर। मतलब क्या, एक छोटा सा शेर है, उसके साथ खत्म कर दूँ। बहुत टाइम हो गया, अभी रैंकर भी बैठे हैं, वेट करना अच्छा नहीं। सिंपल सी चीज है, तकदीर में मुकद्दर लिखना भूल गया खुदा, बट कमबख्त लड़ना सीखा गया। तकदीर में मुकद्दर लिखना भूल गया खुदा, बट कमबख्त लड़ना सीखा गया। मंजिलों को करके जुदा, ये हमको रास्ते बनाना सिखा गया। रास्ते बनाओ, टारगेट्स है, डिसाइडेड है, एफर्ट लेना सीखो, वहां तक कभी ना कभी पहुंचिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Padan sir, for your inspiring words, and we would definitely try to follow your advice. Now, let us move with our second segment of this session, that is interaction with ranker. For that, I would like to call first of all CA Devendra Nawal to begin with that. So, speaking about Devendra Nawal is associated with Bharadeh Charity Foundation as a trustee. He is also a company secretary and he has secured All India Rank 5 in that. He is recently working at Infosys Limited in Pune as a data analyst. It is truly iterated that education is an epitome of one's wisdom and strength. One needs to toil himself and go through thick and thin to achieve something exceptional. Today amongst us, we have one such personality who totally defines that success is a perfect blend of hard work and smart work. Our anchor for today is C. Nishan Khandelwal. He has cleared his Bachelor of Commerce in 2021. He was associated as intern in Bansi S. Mehta and Company, Mumbai. He cleared his Chartered Accountancy exam in first attempt in May 2022 and secured All India Rank 33. He is recently pursuing CFA and has already cleared 2 levels of the course. Currently, he is working as management trainee at Mondelez India Private Limited, Mumbai. He is also a great singer and has grabbed tons of awards for same in different competition. So now I would request Devendra Nawal to continue with the session. तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर सिक्योरिंग ऑल इंडिया रैंक। थैंक यू सो मच। तो कैसा फील होता है जब पता चलता है कि हमारा रैंक आया है, और फैमिली के कैसे रिएक्शंस होते हैं, क्या आपको कैसे लगता है? अच्छा, ये थोड़ा सेशन में लाइट रखना चाहूँगा, ठीक है। सो इन केस कोई भी क्वेश्चन के बीच में भी आपको उससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, बिकॉज वो उसी टाइम पे कवर हो जाएगा। एंड दूसरा, सो रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, अच्छा इंग्लिश में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई होप इट्स फाइन, राइट, ठीक है। सो जो इंसिडेंट जैसा हुआ वो मैं बस नरेट करना चाहूँगा यहाँ पे कि सो आई वॉज इन माई हॉस्टल एंड वहाँ पर समझो मेरे 5 रूममेट्स थे हॉस्टल में, एंड ये लोग 2-3 दिन से प्रैंक किए जा रहे थे कि रिजल्ट आ चुका है, एंड इस वजह से मेरे को पूरा भरोसा था कि अगली बार भी प्रैंक ही करेंगे। और इस टाइम ICAI ने बहुत जल्दी सुबह सुबह रिजल्ट निकाला एंड मैं सोया हुआ था उस टाइम पे, एंड आई थॉट कि वापस से ये लोग चिल्लाने लग गए रिजल्ट आ गया, सो आई थॉट ये लोग प्रैंक ही कर रहे हैं अभी मेरे ऊपर। सो मैं वापस चादर डाल के वापस सो गया, एंड देन मेरा जो रूममेट था उसने मुझे सीधा साइट ओपन करके दिया कि ये, एंड इट वाज लाइक अच्छा ठीक है, सच्ची आ गया। सो दिस वाज द केस विच हैपेंड, एंड देन मैंने ऑब्वियसली रिजल्ट चेक किया, उसमें मार्क्स मुझे लगा कि हाँ मे बी रैंक हो सकता है, देन रैंक चेक किया। सो या डेफिनेटली इट्स एन ओवरवेलमिंग फीलिंग आई वुड से, बट मेरे से ज़्यादा आई वाज हैप्पी कि मेरे फैमिली एंड पेरेंट्स बहुत 10 टाइम्स खुश थे आई वुड से, बिकॉज सो इट वाज ऑन अ वीडियो कॉल, जब मैंने उनको कॉल करके ये सब बताया कि ठीक है रैंक वगैरह भी आया है वगैरह। सो या इट वाज 10x हैप्पीनेस फॉर देम एज वेल, दैट वाज इट। सही है, हमें भी ऐसा मौका दे भगवान कभी कि हम भी ऐसी खुशी महसूस कर सकें।
फिर से सीए करना पड़ेगा। कोई और जगह रैंक ले लेंगे। तो जब आप स्टडी कर रहे थे ड्यूरिंग स्टडी जो शेड्यूल था आपका, तो तब कभी आपने स्टडी करने से पहले भी जब प्लान बनाते थे और जब स्टडी करते तब कभी आपको एक्सपेक्टेशन था कि आपका रैंक आ सकता है या हम उसके कैपेबल हो गए अभी? So I'll start with inter here. इंटर में आई थिंक आई हैव टिक्ड ऑल दी बॉक्सेस जिसको मेरे को लगता है कि हाँ ये प्रोसीजर या ये प्रोसेस के थ्रू मेरे को रैंक आ जाए। सो जैसे अपन बोलते हैं कि जब क्लासेस चालू रहती है तभी भी आपने पढ़ना चाहिए, थोड़ा सॉल्विंग करना चाहिए, थोड़ा नोट्स वगैरह बना के रखना चाहिए। वो मैं ऑलरेडी करते आ रहा था। देन आई गॉट अ डिसेंट लीव ऑफ 3 to 4 months एज वेल फॉर इंटर्स, बट अनफॉर्चुनेटली आई मिस द रैंक बाय सम 19 मार्क्स। ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस है बहुत लोगों के बीच में, बट या मतलब इट वाज लाइक कि मेरे थोड़ा पेपर भी छूट गए थे, तो उस टाइम पे लगा था कि रैंक आ सकता था बट नहीं आया। फाइनल में ऐसा था, सो आई थिंक फाइनल इज एन इवन प्लेइंग फील्ड जहाँ पर आप सभी को 3 साल मिलते हैं जनरली। मतलब अगेन इफ आर्टिकलशिप थोड़ा कम ज़्यादा हुआ तो अगेन वो थोड़ा मैनेज करना पड़ता है डेफिनेटली, बट आई थिंक इट्स स्टिल एन इवन प्लेइंग फील्ड जहाँ पे न्यू से कहीं ना कहीं आप सब्जेक्ट स्टार्ट करते हो, आप वापस से सारे क्लासेस वगैरह लेते हो या फिर सेल्फ स्टडी चालू करते हो। सो हाँ, शुरुआत में मुझे लगा कि हाँ अभी रैंक के लिए एम करना चाहिए, आई थिंक सभी को करना चाहिए, आई थिंक वो अपॉर्चुनिटी सभी के पास होता है, मतलब सोचने में क्या ही बुराई है। बट देन जैसे जैसे आर्टिकलशिप शुरू हुई, जैसे जैसे गाली खाना शुरू हुआ, तो थोड़ा फिर धीरे 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 वर्कलोड के बाद फिर टाइम पास करने लगा। तो वो थोड़ा ऐसा था कि ओके पास हो जाते हैं अभी थोड़ा, जब तक कि स्टडी लीव्स आया। एंड एक्चुअली ये चीज़ मैंने यहाँ पर आके फिर करण सर पदम सर वगैरह से भी डिस्कस की थी कि ठीक है अभी पास होना है वगैरह नहीं, इतना कम लीव से। सो आई गॉट 4 months ऑफ लीव। तो आई थिंक फाइनल के अंदर स्टिल आप स्कोर तो कर ही सकते हो, मतलब रैंक के लिए एम तो कर ही सकते हो डेफिनेटली। एट द एंड स्टडी प्लान जब तक आपके शुरू होते हैं तब तक थोड़ा ऐसा हो जाता है कि पास हो जाता है, बट देन इफ यू टिक ऑल द बॉक्सेस राइट एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर सिचुएशन इज, आई थिंक अगर सब सही जाता है तो डेफिनेटली यू कैन गेट अ रैंक। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा और पूछना चाहूँगा कि जैसे पूना मुंबई में होता है कि मतलब हम ऐसा सोचते हैं कि रैंक आने वाले तो सब बच्चे पूना मुंबई वाले ही होते हैं, हम जलगांव वाले बस पास हो जाए, एग्जाम्शन मिल जाए उसी में खुश होते हैं। तो इसके ऊपर आप क्या? सो आई थिंक एक मेजर फैक्टर जो है वो कल्चर का है, आई थिंक बिकॉज वो ऑब्वियसली फाइनेंशियल हब है एंड वहाँ पे बहुत टाइम से एक एस्टेब्लिश्ड क्लासेस वगैरह का स्ट्रीम है, वहाँ पर बहुत सारे फर्म्स है, वहाँ पर बिग फोर्स वगैरह वहाँ पे लोकेटेड है। तो आई थिंक वो लोगों को पुल मुंबई बहुत जल्दी करता है, मतलब ये पर्टिकुलर कोर्स के लिए एटलीस्ट। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न, बिकॉज इफ आई से आई स्टिल रिमेंबर कि मुंबई के अंदर कुछ 25 या 26 रैंकर्स थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आउट ऑफ दैट आधे जो थे वो ऐसे कई जयपुर से थे या फिर कुछ लोग जो थे वो नागपुर वगैरह साइड से थे, 1-2 लोग। सो आई थिंक कि इट्स नॉट अबाउट कि मुंबई के अंदर मतलब वैसा कुछ है कि वहाँ पे पॉपुलेशन वैसा है, इट्स जस्ट दैट वो कल्चर वैसा है कि लोग वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऑब्वियसली वहाँ पे देने वाले जो नंबर ऑफ पीपल हु आर गिविंग द एग्जाम्स देयर इज आल्सो हाई। सो वो एक चीज़ तो क्रिएट करता है वो कल्चर। सो आई थिंक दैट्स व्हाई वहाँ पर रिजल्ट ज़्यादा आते हैं। मतलब भाई हमारे सोच के ऊपर और कल्चर के ऊपर वो डिपेंड करेगा। या डेफिनेटली आई मीन सो हाँ, ये चीज़ तो डेफिनेट है कि आपके साथ में जो लोग हैं उनका भी एक इम्पैक्ट होता है। सो अभी मैं जिस हॉस्टल में था वहाँ पर 500 बच्चे थे जो सीए ही कर रहे थे। सो वहाँ पे कल्चर थोड़ा बहुत रहता ही है कि हाँ यार पढ़ाई करना है, क्लासेस करना है, सब लोग ऐसे एक दूसरे को पूछते रहते हैं कि यार तेरा क्या चीज़ चल रहा है, अभी कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, फिर अपने को लगता है अच्छा ये भी करना चाहिए। देन देयर आर डिस्कशंस ऑन कौन से सब्जेक्ट के लिए किसका क्लास लेना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी नॉर्मल रहता है। तो आई थिंक यस डेफिनेटली कल्चर का फर्क होता है। अच्छा, मुझे मतलब आपकी पूरी सीए जर्नी के बारे में बताओ कि मतलब आपने यही कोर्स क्यों करना है आपको, एक ऐसे क्यों सोचा आपने, और आपने फिर मतलब इसकी पूरी जर्नी आपकी कैसे हुई? सो इन वन वे आई कैन से कि साइंस करना नहीं था।
आर्ट्स का ऑप्शन नहीं था, लेना कॉमर्स था। बट अच्छा, उसको एक जोक्स अपार्ट, बट उसको एक स्पेसिफिक रीज़न भी था। सो व्हेन आई वाज इन 10th, मेरे जो भैया थे वो ऑलरेडी आर्टिकलशिप कर रहे थे, इज 5 years एल्डर देन मी। तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा हिंट लग गया था ऑब्वियसली ऊपर ऊपर का कि ऑडिट में क्या होता है। ही वाज डूइंग ऑडिट, तो बिजनेस समझने मिलता है, बाद में फ्रीबीज तो सबको ही पता है, आउट स्टेशन जाने मिलता है, एक्सपेंस क्लेम करने मिलता है वगैरह वगैरह। सो एक जो चीज़ वो था कि बिजनेस समझने मिलेगा वगैरह। एंड आफ्टर डूइंग योर सीए का एग्जाम, सीए का प्रोफेशन, सो आई थिंक ये प्रोफेशन ऐसा है कि यू कैन डाइवर्सिफाई अ लॉट। मतलब अगर आपको ऑडिट टैक्स करना है तो वो करो, अगर आपको वेंचर आउट करना है, आपको कोई बिजनेस वगैरह करना है तो वो शुरू कर दो, टीचिंग करना है तो वो कर सकते हो, आपको स्टॉक मार्केट्स में इंटरेस्ट है, आपको इक्विटी रिसर्च वगैरह में जाना है आप वो कर सकते हो, वैल्यूएशंस में जाना है वो कर सकते हो, फाइनेंस के अंदर और एमबीए वगैरह करना है तो सीए जिनका क्लियर होता है उनको प्रेफरेंस होता है। सो यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत है कि आप क्या सिलेक्ट कर सकते हो, बिकॉज 10th and 12th is a very early stage to think of कि आगे जाके क्या होने वाला है, क्या करना है। So I think that's why that was the reason I selected this one. मेरे ख्याल से सीए बनने के बाद भी ये डाउट होता है अब क्या। Definitely मतलब मैं आज खड़े होकर ये नहीं बोल सकता कि 1 साल बाद या 2 साल बाद मैं क्या करने वाला हूँ, because I think 20s is the phase ऐसा मेरे को लगता है कि जहाँ पर आप एक्सप्लोर ही करोगे, बाद में 30s वगैरह में देखेंगे कि आप क्या सेटल करना है, किधर सेटल करना है। आपका स्टडी प्लान कैसा था? आपको कितने मंथ्स के लिए छुट्टी मिली थी? क्योंकि आपकी इनकी आर्टिकलशिप मुंबई से हुई थी, तो मुंबई का कल्चर थोड़ा अलग है यहाँ जलगांव से, तो आपको छुट्टी कितनी मिली थी और आपने कैसे प्लान किया था सीए फाइनल? सो अच्छा, मेरा जो मई 22 अटेम्प्ट था, सो मेरा आर्टिकलशिप जो था वो वाज बिट ऑफ ऑन एंड ऑफ, कि पहले फिजिकली मैं वहाँ पर था, देन बाद में कोविड आ गया तो वापस सब घर पे आ गया 1 साल के लिए लगभग। देन बीच में आउट स्टेशन ऑडिट्स के लिए 3-4 महीना गया था, फिर वापस आया वगैरह वगैरह। सो जो क्लासेस से अगर मैं शुरू करूँ तो क्लासेस जो थी मेरी वो मैं सुबह डेली एक कर लिया करता था, 6 to 9, 7 to 10 जैसा भी बन पाए, सो दैट वो एक अगर क्लास रोज का हो जाता है, आपके पास अगर उतना ऑब्वियसली स्पैन ऑफ टाइम है, अगर 3 साल का, 2.5 साल का, 2 साल का, आई थिंक 1.5 year इज सफिशिएंट इनफ टू कंप्लीट द क्लासेस। बट जितना भी आपका स्पैन है, अगर उसके अंदर आप एक क्लासेस रोज की कर लेते हो, देन इट गेट्स इजी एट द टाइम ऑफ योर स्टडी लीव्स कि आप बाद में सिर्फ पढ़ाई करो और क्लासेस ना देखो। सो 4 months का मुझे टोटल लीव मिला था एट द एंड, वो भी बिकॉज कि 4 महीने मिला था, मतलब 4 months इसलिए मैं टर्म कर रहा हूँ बिकॉज 4 महीने मिला था फर्म से लीव, देन उसमें से 12-15 days मेरा थोड़ा क्लासेस में गया था, एंड देन आईसीआई ने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया था, 12th या 14th को फर्स्ट पेपर था, तो प्लस माइनस करके थोड़ा 4 months हो चुका था। सो इट वाज 4 months का लीव जिसके अंदर मैंने पूरा प्लान किया था। तो आपके क्लासेस सब आर्टिकलशिप के दौरान ही आपने शुरू कर दिए थे वैसे? यस, सो फरवरी आई रिमेंबर मैंने एसएफएम फर्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट किया था। फरवरी में एसएफएम स्टार्ट करने के बाद देन वही जनरली एसएफएम के बाद सब लोग एफआर लेते हैं, देन कॉस्टिंग लेते हैं, देन फिर इट डजंट मैटर, मतलब लास्ट में डीडी उठाना चाहिए मेरे हिसाब से, बट बीच में फिर आप फिलर के इसमें जो भी सब्जेक्ट लेना चाहो ले सकते हो। आई थिंक 1.5 year इज डिसेंट इनफ टाइम, 1.5 to 2 years। अगर ऐसा आपको पता है कि यार मुझे आउट स्टेशन वगैरह जाना पड़ेगा, तो आई थिंक 2 साल के अंदर आप चालू कर दो थोड़ा धीरे धीरे, बिकॉज आई न्यू कि मेरा आउट स्टेशन रहेगा, तो मेरा 2 महीना आउट स्टेशन रहता था, सो एवरी ईयर। सो इसलिए मैंने थोड़ा आई थिंक 1.5 year से जल्दी शुरू किया था, सो दैट वो फिर नलीफा हो जाएगी। तो ये हुआ क्लासेस के लिए, पर आपको क्या लगता है कि जो लास्ट के 3.5-4 महीने की लीव मिलती है, क्या वो सफिशिएंट हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है या कम होती है आपके लिए? I think 4.5 months is optimum, because अगर for both groups, if 4.5 महीने से ज़्यादा हो जाता है तो फिर ऐसा लगता है यार कि सदियों से पढ़ ही रहे, और अगर 4-4.5 से कम मिलता है देन ऐसा हो जाता है कि यार टाइम ही नहीं है मेरे पास पढ़ने के लिए, एंड वो फ्रस्ट्रेशन के अंदर ही अपन छोड़ के निकल जाता है। So I think 4.5 months is optimum.
अच्छा, आपका फाइनल और इंटर भी हुआ तो पॉसिबल हुआ तो वो भी बताना कि सब्जेक्ट वाइज प्लान कैसा है आपका, कैसा रहा, आप कैसे शेड्यूल करते थे? सब्जेक्ट वाइज जो है आई थिंक मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से कवर कर पाऊंगा बिकॉज अदरवाइज टाइम अपना कंस्ट्रेंट थोड़ा निकल जाएगा एंड लेट मी जस्ट रेफर टू माय नोट्स एज वेल बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस आउट ऑन एनीथिंग सो अच्छा सो व्हाट इज एप्लीकेबल फॉर फाइनल समवेयर इट इज एप्लीकेबल फॉर इंटर आल्सो बिकॉज जो मैंने इंटर में किया था लगभग वही चीज़ें मैंने फाइनल में फॉलो की थी सो मैं थोड़ा फाइनल मेरा बहुत रिसेंटली हुआ इसलिए उसके पाथ पे बोलूँगा बट यू कैन यूज इट फॉर इंटर एज वेल सो द फर्स्ट थिंग इज जब आपका क्लासेस रहता है तो क्लासेस के टाइम पे ही आपका थोड़ा प्रिपरेशन शुरू हो जाता है बिकॉज क्लासेस के अंदर जो टीचर्स बताते हैं वो 2 साल पहले पढ़ने वाले हो एंड आपका बुक बाद में जो है सीधा 2 साल बाद खुलने वाला है जब आपका स्टडी लीव शुरू हो रहा है सो आई थिंक अगर उस टाइम पे जो लॉजिक्स वगैरह आपके प्रोफेसर या टीचर्स या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो उसके अंदर आपने जो सोचे हैं अगर आप आपके नोट्स में लिख सकते हो तो दैट वुड बी बेटर बिकॉज बाद में आपको उसके ऊपर टाइम ज़्यादा नहीं डालना पड़ेगा ये सोचने में कि अरे आया कैसे ये हुआ क्यों बिकॉज आपके उसमें आपने ही लिखा हुआ चीज़ रहेगा आपकी लैंग्वेज में लिखा हुआ चीज़ रहेगा कि अच्छा ये इसका कंसेप्ट और लॉजिक ये है सो दैट इज द फर्स्ट थिंग यू कैन स्टार्ट विद ड्यूरिंग द क्लासेस सेकेंड थिंग आई वुड से कि जो मटेरियल्स है आपके जो भी आप अगर स्टडी मटेरियल यूज कर रहे हो या फिर अगर आप कोई प्रोफेसर का बुक्स यूज कर रहे हो तो वो एक स्टैटिक रखो बिकॉज अगर मैंने फर्स्ट जो स्टडी लीव के अंदर जो प्रिपरेशन का टाइम रहेगा उसको मैं इस तरह से बांटता हूँ फर्स्ट रीडिंग देन रिविजन्स ठीक है जो फर्स्ट रीडिंग है उसके अंदर ही आप डिसाइड कर लो कि यार मुझे ये प्रोफेसर का सूट कर रहा है या मुझे ये नोट सूट कर रहे हैं जो भी कर रहा है बिकॉज देन अगर इफ यू चेंज इट इन योर रिविजन्स देन इट गेट्स डिफिकल्ट फॉर योर फोनेटिक मेमोरी सॉरी फोटोजेनिक मेमोरी बिकॉज आपने एक बार किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में वो चीज़ पढ़ी है देन बाद में आप कोई और दूसरे बुक से वो रेफर कर रहे हो तो वो उतना ग्रैस्प नहीं हो पाएगा थर्ड थिंग इज सो अभी सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बोलूँ सो FR एंड SF FR के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ सो बेसिकली इट्स अकाउंट्स फॉर इंटर एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर द फाइनल फोक्स तो FR के अंदर व्हाट यू कैन डू इज कि इंस्टेड ऑफ हैविंग अ स्पेसिफिक नोट्स सेपरेट नोट्स यू कैन जस्ट मार्क इन योर ओन नोटबुक बिकॉज वो याद नहीं आता है मतलब मैंने मेरे सीनियर से ही पूछा था कि आपने नोट्स बनाए थे क्या एंड देन दे सेड कि नोट्स तो बनाए थे बट बाद में रेफर नहीं किया बिकॉज जो लिखा है वही याद नहीं आ रहा है बिकॉज इट इज रियली वास्ट थिंग एंड वैसे भी वो प्रैक्टिकली भी लिंक्ड है तो आई थिंक आप सिर्फ वहाँ पे मार्क कर दो आपके मार्कर से या वट एवर मार्किंग स्टाइल यू हैव कि भाई मैं पेन से मार्क कर दिया करता था ब्लू पेन से कि अच्छा ये कर्ली ब्रैकेट्स के साथ ये पार्ट जो है मैंने लास्ट में रेफर करना है सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मार्क इट लाइक दैट एंड ऑब्वियसली क्वेश्चंस जैसे पदम सर ने बोला कि क्वेश्चंस जो है आपको मार्क करने ही पड़ेंगे बिकॉज रीडिंग के अंदर यू कैन स्पेंड heavy amount of time on a particular subject but revisions have to be crisp because reading is like कि आपको जितना टाइम लगने वाला है समझने में वो लगने ही वाला है बट रिवीजन जो है वो आप 4-5 डेज जो भी आपका allocated है उसमें कंप्लीट हो जाना चाहिए उस हिसाब से रहना चाहिए सर आपके the next thing in FR is कि so this is applicable for all the practical subjects whether it be FR, SFM or costing that before looking at the answer you can directly start solving it so उससे होगा क्या कि even if so it would be a practice for new questions in the exam because you आपने वैसे भी जब क्लासेस चल रही थी तब आपको लॉजिक पता है ठीक है क्लासेस इसीलिए होती है कि आपको कंसेप्ट पता चल जाए सो यू नो द लॉजिक नाउ सो अभी आप सीधा स्टार्ट करना शुरू कर दो सॉल्व करना तो उसमें आपका न्यू क्वेश्चन अगर कुछ आगे जाता है तो एक थोड़ा मेंटली ईज आउट हो गया कि ठीक है यार ये अगर नया भी है तो अभी भी पहले भी मैंने सॉल्व किए हुए एक तरह से नए क्वेश्चंस सो खुद से सॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेटली देन फॉर SFM आई वुड से यू कैन हैव अ समरी बुक के अंदर सिर्फ फॉर्मूलाज मत लिखो समरी बुक्स के अंदर कंसेप्ट भी लिखो कि ये जो फॉर्मूला है ये क्यों आया ये जो कंसेप्ट है ये क्यों आया सो दैट वुड हेल्प अ लॉट बिकॉज बाद में वापस से जब अगर सिर्फ फॉर्मूलाज दिखेंगे तो क्लिक नहीं हो पाएगा कि ये ब्लैक बॉक्स है क्या
सो दैट यू कैन डू कि कंसेप्ट वगैरह लिखकर एक एसएफएम, सो एसएफएम बेसिकली फॉर इंटरफोक्सिस एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो इको के साथ होता है, ठीक है। फॉर लॉ एंड ऑडिट, फॉर लॉ आई वुड से कि यू कैन मेक शॉर्ट नोट्स। ऑडिट के लिए नोट्स बनाने का गलती नहीं करना, बिकॉज आप कितना भी नोट्स बना लो आप वापस से वही चीज लिखने पे एंड कर जाओगे, बिकॉज उसके अंदर हर लाइन में कुछ ना कुछ तो है। सो व्हाट यू कैन इंस्टेड डू इज फॉर ऑडिट यू कैन जस्ट अंडरलाइन द मेन थिंग्स और मेन वर्ड्स, कीवर्ड्स एज पदम सर सेड कि ये जो पार्ट है ये मुझे लिखना जरूरी है एग्जाम्स के अंदर, सो यू कैन मार्क दैट। अच्छा, इसमें एक दिक्कत ये आता है कि मुझे याद नहीं हो पा रहा है चीज़, सो फॉर दैट देयर आर वेरियस थिंग्स विच पीपल ट्राई। कुछ जो मेरे जो भैया थे वो निमोनिक्स बनाया करते थे, बट मुझे निमोनिक्स इतना नहीं जमता था, तो व्हाट आई डिड इज जनरली ऑडिट के अंदर देयर आर मेनी टॉपिक्स जिसके अंदर एक प्रोसेस है। सो फॉर एग्जांपल बैंकिंग वगैरह वाले जो टॉपिक्स है जहाँ पे ऑडिट्स के, उसमें एक प्रोसेस है कि इन जनरल अगर आप इस चीज़ को ऑडिट करोगे तो कैसे करोगे। सो आई जस्ट स्ट्रक्चर्ड देम कि बुक में अगर पॉइंट्स 1 2 3 4 है तो मैं मेरे 1 2 3 4 बना दिया करता था कि ठीक है पहले सबसे पहले ये होएगा, फिर ये होएगा, फिर ये होएगा, फिर ये होएगा। तो वो फ्लो के अंदर आधी चीज़ें वैसे याद रह जाती हैं, कुछ चीज़ें जो है वो ऑब्वियसली अभी जैसे कंसेप्चुअल है तो आपको वो वर्ड्स के थ्रू क्लिक हो जाती है कि ठीक है ये चीज़ तो ये रेफर करती है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कमिंग बैक टू लॉ के लिए आई थिंक नोट्स बनाना इज प्रेफरेबल डेफिनेटली, बिकॉज लॉ बहुत ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट है, मतलब ऐसे नहीं कि उसमें कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है या प्रोविजंस बहुत ज़्यादा है, बट अगर आप देखोगे तो वो स्ट्रक्चर्ड इस तरह से, वो लीगल लैंग्वेज इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है कि वो थोड़ा ज़्यादा लेंथी दिखता है। तो इफ़ यू मेक नोट्स तो इट्स बेटर, नहीं बना रहे हो तो देन यू कैन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट अगेन अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स एंड हैव अ रन थ्रू देम इन द रिविजन्स। देन कॉस्टिंग, आई वुड से कि कॉस्टिंग के अंदर आई थिंक मटेरियल इज जो ICI का है वो बेस्ट है कॉस्टिंग के लिए, बिकॉज वहाँ पर ही अपने को समझ में आता है। सो जनरली व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लासेस जो प्रोफेसर्स ले रहे हैं कि दे आर फोकसिंग मोर ऑन द प्रैक्टिकल थिंग्स एंड लिविंग द थियोरी थिंग्स दे आर लिविंग द थियोरी थिंग्स फॉर द लास्ट का सेशंस, जो वैसे भी लास्ट में जो भी अपने लेक्चर्स रहते हैं वो कोई देखता है नहीं, सो वो उसमें मिस हो जाते हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट अगर आप क्लासेस कर भी रहे हो तो बाद में सीधा मॉड्यूल पे शिफ्ट कर सकते हो, बिकॉज दैट वुड बी बेटर, बिकॉज आपको फिर एक पर्सपेक्टिव आ जाएगा कि ओके दिस इज द पर्टिकुलर थिंग विच ICI रिक्वायर्स यू टू स्टडी, एंड उस बेसिस पे आप फिर मतलब उसमें अच्छे से फेयर कर सकते हो। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स के लिए मैं बोलूँगा कि सो डायरेक्ट टैक्स के अंदर अगर आप स्टार्टिंग से आपकी समरी बुक जो आप यूज़ करने वाले हो अगर वो आपके पास रहे तो इट्स बेटर, बिकॉज आप अलग से समरी बनाने जाओगे तो 4 महीना उसी में निकल जाएगा डायरेक्ट टैक्स में। सो व्हाट वुड बी प्रेफरेबल इज कि आप जो समरी बुक है उसको साथ में रखो, ठीक है। जैसे पदम सर ने बोला कि चार्ट्स वगैरह आते हैं मार्केट में, इवन इफ यू आर स्टडिंग एनी अदर सब्जेक्ट देन हैव दोस चार्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू व्हेन यू आर स्टडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले पढ़ लो, समझ लो जो कोर्स का बुक है, उसके बाद में वो चार्ट्स वापस से रेफर करो तुरंत, बिकॉज तब आपको समझ जाएगा कि ओके ये चीज जो है, ये 10 वर्ड्स जो है यहाँ पर जाके 2 वर्ड्स कहाँ पर बैठ रहा है। बिकॉज अदरवाइज अगर मैं बाद में चार्ट्स वापस से देखूंगा तो मुझे समझ ही नहीं आएगा कि यार इसका लॉजिक क्या था या इसका कंसेप्ट क्या था, बिकॉज वो इतना शॉर्ट होता है। एंड वो शॉर्टनेस जो है वो आई थिंक इसलिए है बिकॉज जो जिसने भी वो चीज़ बनाई है वो ऑलरेडी उससे थॉरो है, और उसके बाद में जब वो बनाकर देगा आपको तभी वो चीज़ उतना डीपली आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा जितना आपको रिक्वायर्ड है। सो आई थिंक वो आप तभी की तभी रेफर कर लो। जैसे डायरेक्ट टैक्स के अंदर मैंने जो बुक रेफर की थी कॉम्पैक्ट करके, सो उसके अंदर मैंने स्टार्टिंग से ही मार्किंग वगैरह कर ली थी, एंड देन जब रिविजन्स किए तब मैंने वही देखा, बिकॉज बाद में इतना टाइम नहीं बचता है। लास्टली फॉर इनडायरेक्ट टैक्स आई थिंक हैंड रिटन समरीज जो है वो ज़्यादा प्रेफर्ड रहता है, बिकॉज वो इजीली भी बन जाते हैं और वो उसमें चार्ट्स वगैरह भी ऑब्वियसली अवेलेबल रहती है। चार्ट्स आर ऑल्सो गुड इफ़ यू डोंट हैव टाइम, तो फिर चार्ट्स वगैरह रेफर कर सकते हो। एंड इसमें एक चीज़ है कि कस्टम्स को कभी हल्के में मत लेना, बिकॉज कस्टम्स के अंदर ही मार्क्स निकलते हैं, वी फील कि यार कस्टम्स लास्ट में देखेंगे और वो छूट जाते हैं। सो वो दैट वुड बी वन थिंग टू पॉन्डर अपॉन।
So I think this is the subject of अभी जैसे हम पढ़ना शुरू करें, शेड्यूल बना लिया, पढ़ना शुरू किया, पर जैसे जैसे शेड्यूल बनाया लेकिन वो फॉलो नहीं हो रहा है। दोस्त से बात की, दोस्त बोल रहा है कि मेरा ये हो गया, मैंने टेस्ट सीरीज दे दी है और अभी ये पढ़ने वाला हूँ। तो इससे जब टेंशन आने लगता है कि ये स्ट्रेस कैसे मैनेज करें, आप क्या करते थे इस चीज़ के लिए? This thing actually started when I came back from Mumbai for my study leave. So जब मैं आया था तो वैसे भी I think there were very few people जो मुंबई में आर्टिकलशिप कर रहे थे जिनको सिर्फ 4 महीने का लीव मिला था। So बहुत से लोग जो थे वो ऑलरेडी पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। यहाँ पर भी थोड़ा आई थिंक एक्सटेंडेड लीव ही मिलता है, 5 मंथ्स तो एटलीस्ट मिलता ही है आई थिंक सब जगह। सो वो चीज़ तो ऑलरेडी थी कि यार बाकी लोगों का पहले से ही शुरू हो चुका है। जब भी मैं बात करता था तो वैसा था कि यार 1-2 सब्जेक्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं सबके। सो वो तो इट्स लाइक कि मुझे बस ये पता था कि यार उनका देखकर तो मेरा कुछ चेंज होने वाला है नहीं। मतलब इट्स नॉट राइट टू कंपेयर बिकॉज दे आर सिटिंग इन सम सेलिंग इन सम डिफरेंट बोट एंड आई एम सेलिंग इन सम डिफरेंट बोट। सो एक तो वो चीज़ है कि अगर आप पूछ भी रहे हो किसी से कि आपका कितना हुआ है कितना नहीं हुआ, पहले तो अगर आप नहीं पूछोगे तो इट्स प्रेफरेबल, ठीक है, बिकॉज वो अल्टीमेटली आपके ऊपर टेंशन वगैरह बनेगा। सो जो भी आपके लास्ट में 2-3 अच्छे फ्रेंड्स हैं जिनसे आप इंटरेक्ट करते हो उनसे अगर आप बात करते हो इट्स फाइन, बट उसके अंदर अगर पूछ भी रहे हो तो सिर्फ इतना ये रखना चाहिए कि ठीक है जिसका जितना भी हुआ मेरा इतना हुआ इतना बाकी है, दैट्स इट। अच्छा बाकी रिगार्डिंग फ्रस्ट्रेशन वगैरह जो आता है, सो आई थिंक कि यू कैन ऐड समथिंग टू योर डेली शेड्यूल। जैसे अगर आपको लग रहा है कि 24 घंटे में से जैसे आपको लग रहा है कि यार मैं 8 से 10 घंटे का ही इफेक्टिव दे पाऊंगा, मैं इफेक्टिव बोल रहा हूँ, ठीक है, मतलब वो अभी कितना स्ट्रेच करना है वो डिपेंड्स, बट अगर आपको लगता है कि 8 से 10 का ही मैं इफेक्टिव दे पाऊंगा तो उसके अंदर आधे 1 घंटे का आप एक रिफ्रेशर ऐड कर सकते हो। कोई भी चीज़ हो सकती है, आपको वॉक पे जाना है वॉक पे जाओ, एक्सरसाइज करना है एक्सरसाइज करो, या जैसे मैं गाना गाता था तो मैं गा लिया करता था। तो अगर क्रिकेट वगैरह खेलना है तो आई थिंक 15 डेज के अंदर एक आधी बार क्रिकेट खेलने चले गए एज स्ट्रेस बस्टर। हाँ ऑब्वियसली वो इतना रिकरेंट नहीं हो जाना चाहिए कि मतलब आप क्रिकेट ही खेल रहे हो और उसके बाद में या तो जैसे आपको पता है कि निशान सर का CFA लेवल 2 भी क्लियर हो गया, तो इसका मतलब आपने शुरुआत CA के बाद किया था, कैसे किया था, और इस कोर्स के बारे में थोड़ा ब्रीफ में बता दें। सो CFA जो कोर्स है वो इस मोर फॉर अगर आपको इक्विटी रिसर्च वगैरह में स्टॉक मार्केट एनालिसिस में वगैरह जाना है या वैल्यूएशंस में जाना है, सो इट इज़ रिलेवेंट फॉर दो स्कोप्स। अभी सो इट वाज लाइक कि बैक देन मुझे ऐसा था कि यार ऑब्वियसली मुझे ये पता था कि CA करने के बाद में भी मुझे थोड़ा और एक्सप्लोर करना है, मतलब मुझे सिर्फ ये CA वाला इंडस्ट्री से स्टिक नहीं करना है, मुझे थोड़ा एक्सप्लोर भी करना है, और अगर मुझे वो अच्छा लगता है तो वो ये अच्छा लगता है तो ये। सो आई थॉट कि अच्छा CFA अगेन इज अ डिग्री, ठीक है, बट इट डजंट मीन कि वो कर लिया तो आपको स्टॉक मार्केट आ जाएगा और वो नहीं किया तो आपको स्टॉक मार्केट एनालिसिस नहीं आएगा अगेन, ठीक है। विद दिस नोट सो CFA मैंने स्टार्ट किया था आई थिंक 2021 में मैंने एग्जाम दिया था लेवल में, एंड देन मैंने उसका ड्रॉप कर दिया बीच में। लेवल 2 जो था वो मैंने नहीं दिया बीच में बिकॉज ऑब्वियसली फाइनल था, फाइनल में ही थोड़े लगे पड़े थे, क्लासेस वगैरह बाकी थे, सो दैट्स व्हाई जो CFA था मैंने देन दिस ईयर 2023 के अंदर ये भी मतलब उसका रिजल्ट आया Jan 23 में, नवंबर 22 में आफ्टर CA फाइनल। सो दिस कोर्सेज विल टीच यू कि स्टॉक मार्केट एनालिसिस कैसे करना है, वेदर इट बी इक्विटी वेदर इट बी डेट, एंड वो रिकॉग्नाइज्ड भी है। आई मीन जनरली अगर आपको इक्विटी रिसर्च वगैरह अभी देयर इज अ न्यू ट्रेंड अबाउट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आई थिंक CFA बहुत नेसेसरी हो जाता है बिकॉज लाइक CA जो क्रेडिबिलिटी शो कर रहा है कि आप ऑडिट कर सकते हो, सो इन द सेम मैनर CFA एज अ डिग्री क्रेडिबिलिटी शो करता है कि आप ठीक है आप वैल्यूएशंस वगैरह कर सकते हो, इक्विटी रिसर्च कर सकते हो या स्टॉक मार्केट एनालिसिस जो भी ट्रेडिंग वगैरह। आपकी आर्टिकलशिप मुंबई से हुई है, तो मतलब मुंबई का कल्चर और मुंबई की आर्टिकलशिप में आपने क्या सीखा, कैसे आपने आर्टिकलशिप किया पूरा, और उसका एकेडमिकली आपको कितना फायदा होता है?
जब पढ़ाई शुरू करते हैं, तो वो एक्सपीरियंस कितना काम में आता है? आई थिंक अपने होम टाउन से मूव करके कोई दूसरे टाउन में जाना इज ऑलवेज एन एक्सपीरियंस, ठीक है। एंड आई थिंक सबने ये एक्सपीरियंस करना ही चाहिए, वेदर इट बी बिफोर योर आर्टिकलशिप इन सीए या आफ्टर योर आर्टिकलशिप और सीए। सो बिकॉज इट एक्चुअली broadens the things, broadens the perspective which you have. कमिंग बैक टू आर्टिकलशिप, सो मेरा आर्टिकलशिप जो था वो मोर ऑफ 1.5 ईयर ऑडिट, 1.5 ईयर टैक्स था, बिकॉज मेरे यहाँ पे रूल था कि 1.5 ईयर ऑडिट पहले करना ही पड़ेगा, देन ही आपको टैक्स मिलता है। सो पहले ऑडिट किया था, देन बाद में टैक्सेशन में गया मैं। सो ऑडिट के अंदर मैंने प्राइवेट कंपनीज भी की है, लिस्टेड एंटिटीज भी की है, एंड देन टैक्सेशन में आई वाज मोर इन टैक्सेशन एडवाइजरी। So linking it to how it helped me in CA finals, so there are a few things which actually help. जैसे फॉर एग्जांपल स्टैट ऑडिट वगैरह के अंदर अपन TDS करते हैं, स्टैट्यूटरी पेमेंट्स करते हैं। स्टैट्यूटरी पेमेंट्स जो है उसमें आई स्टिल रिमेंबर कि जितने एटलीस्ट मैंने स्टैट्यूटरी पेमेंट्स ऑडिट में कवर किए थे, जैसे 194Q वगैरह हो गए, वो आई स्टिल रिमेंबर्ड इट ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ माय फाइनल। बट आई थिंक एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव देने के लिए इट्स फाइन कि मतलब जैसे ऑडिट अगर आपने किया है या फिर टैक्स किया है तो इट्स मोर हेल्पफुल इन योर एग्जाम, बिकॉज टैक्स इज वेरी प्रोविजंस वगैरह रहते हैं तो डायरेक्टली आप देख सकते हो कि ये आपने काम किया और ये चीज़ है वैसा। सो फॉर टैक्स डेफिनेटली इट इज इम्पॉर्टेंट, मतलब वो हेल्प करेगा। ऑडिट में भी सम थिंग्स विल हेल्प, बट अगेन मतलब आर्टिकलशिप इज मोर फॉर प्रैक्टिकल एक्सपोजर रादर देन व्हाट वी स्टडी। सो आई थिंक वो एक्सपोजर इज डेफिनेटली इम्पोर्टेंट, एंड जो आप थियोरेटिकली सीखने वाले हो तो प्रोफेशन ये करिकुलम के अंदर ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड है कि बेसिक्स है। अच्छा, ये आर्टिकलशिप सिलेक्ट करता है, मतलब जैसे इंटर क्लियर होते हैं तो हमें आर्टिकलशिप कहाँ करनी है, फिर अगर वो बाहर जाना है तो फिर कॉलेज कैसे सिलेक्ट करना, वो इंटरनल लेना एक्सटर्नल लेना, तो उसके बारे में आपका कैसा ओपिनियन है? पहले आर्टिकलशिप से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकलशिप में आई थिंक कि इट डिपेंड्स, अगर आपको पता है या नहीं कि अल्टीमेटली आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस, ये जनरली सभी लोग मतलब ये रेकमेंड करते हैं, इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस इन योर ओन होम टाउन, दिस इज डेफिनेटली बेटर कि आप आपका जो होम टाउन है वहाँ पर ही आर्टिकलशिप करो, बिकॉज दैट क्रिएट्स द नेटवर्क विच यू रिक्वायर फॉर योर ओन प्रैक्टिस। अच्छा, अगर आपको ये ऐसा है कि आपको जॉब करना है, देन अगेन देयर आर टू वे आउट्स, एक तो होम टाउन में आर्टिकलशिप करो या फिर बाहर जाके आर्टिकलशिप करो। व्हाट वुड बी प्रेफर्ड इज कि बाहर जाके आर्टिकलशिप करो, बिकॉज देन इट शोज कि यू आर रेडी टू रीलोकेट फर्स्ट थिंग, बिकॉज अगेन जब इंटरव्यूज होते हैं देन दे आस्क यू वेदर यू आर रेडी टू रीलोकेट, तो आप बोल सकते हो कि हाँ मैं ऑलरेडी 2-3 साल से ये पर्टिकुलर जो भी सिटी है वहाँ पे काम कर रहा हूँ। सो अगर वैसा है जॉब बाहर जाके करना है देन इट्स डेफिनेटली बाहर जाके करना चाहिए। एंड अगर ऐसा है कि कुछ अभी कुछ मेरे जो वहाँ पर मुंबई के अंदर जो दोस्त हैं उनका ऐसा था कि यार आगे जाके बिजनेस करना है, सो उन्होंने ये भी किया कि 1.5 ईयर जो है वहाँ पर आर्टिकलशिप किया 1.5 ईयर, एंड देन ट्रांसफ़र ले लिया अपने पर्टिकुलर प्लेसेस पे, एंड देन वहाँ पर उन्होंने कंटिन्यू किया। सो वो भी एक चीज़ कर सकते हैं। और रिगार्डिंग कॉलेज आई थिंक जॉब करना है देन सो देर आर 3 थिंग्स। एक वो कॉलेजेस जहाँ पर अटेंडेंस कंपलसरी, सेकंड इज जो कॉलेज है बट अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है, एंड थर्ड इज जो एक्सटर्नल होता है जहाँ पर तो आई मीन सिर्फ एग्जाम्स होते हैं लास्ट में। सो आई थिंक द सेकंड वन इज प्रेफरेबल, जहाँ पर अटेंडेंस इतना कंपलसरी नहीं है, बिकॉज आप वैसे भी रिगरसली आप सीए का आर्टिकलशिप भी कर रहे हो और पढ़ाई भी कर रहे हो, सो इट्स प्रेफरेबल कि आपके पास में थोड़ा टाइम बचे घर पर थोड़ा रिलैक्स करने का, प्लस तो अगर आपको और पढ़ना वगैरह है। कुछ लोग रहते हैं जो सो जनरली दिस थिंग आई हैव सीन ओनली इन केस ऑफ दोज हु एक्चुअली स्टे इन मुंबई, मतलब जिनका घर ऑलरेडी मुंबई में है वो लोग जाते हैं कि भाई फुल अटेंडेंस वाले कॉलेजेस में, बिकॉज थोड़ा उनका पहले से प्लान होता है चीज़ें। बट यस मैंने भी मतलब जहाँ पर इतना स्ट्रिक्ट नहीं था अटेंडेंस वहाँ से ही किया। अभी ये
टेक्निकल ये क्वेश्चंस बहुत हो गए, अगर किसी ऑडियंस को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं, या तो फिर हम उनकी जो पैशन है, उनका जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए यूज करते हो सिंगिंग का एक परफॉर्मेंस ले लेंगे। सर मुझे बस ये पूछना था कि सेल्फ स्टडी वो क्या करते हैं, रीडिंग, राइटिंग या फिर और कुछ? सो आई थिंक सेल्फ स्टडी के अंदर तीनों चीज़ें होनी चाहिए ऑब्वियसली, स्टार्टिंग विथ रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, वो चीज़ समझ जाए, उसके बाद में आप उसका राइटिंग प्रैक्टिस भी करना इज नेसेसरी। आई मीन अगर राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर ऐसा होता है कि 4 महीना इज टू लेस, मतलब आपका भी एग्जैक्टली फाउंडेशन है, इंटर है, फाइनल इंटर है, ठीक है। सो आई थिंक व्हाट यू कैन डू इज कि जब समझ जाए चीज़ तो पहले तो उसको सॉल्व करने का ट्राई करो। जब आप रिवीजन करोगे तो दिस वाज द रीडिंग फेज, रीडिंग में आपने समझ लिया, फिर जब रिवाइज करोगे तब खुद से अटेम्प्ट करो कि जो मैंने पहले ऑब्वियसली ये सब ऑब्वियसली पहले सॉल्व किया हुआ है तो वापस मुझे जो मार्क्स हमसे वो सॉल्व करते आ रहे हैं या नहीं। सो वो एक चीज़ रहेगा। एंड अच्छा, वेदर यू विल बी टेकिंग क्लासेस और नॉट, क्लासेस लेने वाले हो, सो उस केस में तो आप रीडिंग के अंदर भी डायरेक्टली राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करें। और राइटिंग प्रैक्टिस ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मतलब फॉर फ्यू सम्स यू कैन हैव लेंदी में एकदम प्रॉपर सजाते हुए सॉल्व कर रहा हूँ वैसा, बट अगेन टाइम कंस्टेंट छोटा छोटा लिख के। अच्छा, फॉर दिस सब्जेक्ट वाइज जो है एक्चुअली व्हाट हैपेंड विद मी इज कि मैंने भी वीडियोस वगैरह तो देखी थी ऑब्वियसली, और मेरे सीनियर्स वगैरह से भी बात किया था। सो बट एट द एंड क्या हो रहा था कि मैं एक सब्जेक्ट मैंने पूरा देखा, बाद में मैं एक सब्जेक्ट करता था, फिर वापस भूल जाता था कि यार ये सब्जेक्ट में क्या करना है। सो आई हैव अ PDF ऑफ दैट विद मी, सो यू कैन हैव इट। मैं देवेंद्र भैया को एक बार शेयर कर दूंगा, he can share it with you अगर आपको required है। So I think that would cover everything. Today I'm having a really bad throat. सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है, जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम, हो आसमां मिला जमीन को मेरी आधे आधे पूरे हैं, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम, ना सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा मैंने जीना मेरे हमदम, ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। थैंक यू। Now I would request Ishika for vote of thanks of this program. I, Ishika Mahajan, coordinator of Badade Charity Foundation, would like to express gratitude from bottom of my heart to CA Padam Singh Patil, to CA Nishant Khandelwal for their inspiring words and guiding our aspirants. I would also like to thank Badade Charity Foundation, all its trustees and coordinators
for organizing such a valuable seminar and addressing the most pivotal topic which will surely set the roadmap for our students. I would also like to appreciate the efforts of admin as well as technical team. Lastly, the entire Badale Charity Foundation would like to present gratitude towards audience for their gracious presence and making the session more lively and successful. Thank you. एक स्पेशल मेंशन देना है प्रोग्राम के लिए, वो है सीए अमृता मनियार। तो मैं परीक्षित सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अमृता मनियार का एक बुक से और एक बुके से ऑनर करे एज अ ग्रेटिट्यूड, बिकॉज उन्होंने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम हमको दिया। सो तो एज वी कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन, मैं बस सबको यही कहना चाहूँगा कि ये सेशन से कुछ ना कुछ जरूर हमने सीखना चाहिए, भले ही हम कितना अप्लाई कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं, कितने टाइम तक मोटिवेटेड रह पाते हैं, नहीं रह पाते हैं, बट हर एक पर्सनैलिटी आप ऐसा था जिससे हम कुछ ना कुछ सीख सके, कुछ अप्लाई कर सके, भले ही वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो। तो मैं सभी डिग्नेटरीज का फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, और सभी स्टूडेंट्स का भी जो अपना टाइम निकाल के इस सेशन के लिए आए। उनके सभी के लिए रिफ्रेशमेंट लगे, तो मैं सभी वो रिफ्रेशमेंट लिए बिना नहीं जाए। थैंक यू।